Good evening, friends. A warm welcome to all. Today, we have a guest speaker, P.S. Rathorji and C.A. Vivek Khuranaji. So, about P.S. Rathorji. He is founder of Anytime Classes, the learning app that is vast experience in launching new ideas successfully and making it successful. In late night, he left the glorious corporate world job to start Rathore Institute of Commerce, whose students are appearing in chartered accountancy exam. Very soon, Radhod Institute became an apex institute for CA preparation. He also founded Institute of Systematic Studies. In last 2 decades, he has produced more than 500 rank holders in CA inter and CA final exams. He has produced thousands of chartered accountants who are working as a CFO and functional head of different organizations in India and across the globe. Rajasthan originated, born in Calcutta, he is a qualified ICAI distinguished fellow of Post and Management Accountants of India and a graduate from University of Calcutta. He has imparted motivational training for almost 20 million participants across the globe, including Prince and Princess of Kingdom, bureaucrats, IAS, IPS ministers, president, politicians, and CEO of many national and multinational companies. Professor, he is a leadership and life coach, honored at House of Commons Business, British Parliament London as the best international management guru and a firework trainer. He won the Speaking Tree First Good Karma Awards 2016-17 as the management guru presented by the Times of India. Recently, he has been awarded by HRAI Awards in 2019. He has also been awarded with the Leadership Excellence Awards at Thailand by Kamdenu Group and DC Awards by Lal Singh Foundation. He has also been awarded with the Ved Pressure Award in the British Parliament for creating awareness about the relevance of the Vedas and Shiv Sutras in management and motivational speaking. He is a TV host, business coach, and an expert corporate strategist. He has hosted a series of episodes of a popular television show, Body Talk, for a national channel. His other television shows are P.S. Rathore Live Show, a dial-in program was aired on a national channel resolving personal and professional conflict in the mind of youth. He is running many entrepreneurial ventures as well. In 2008, Internet Survey declared him as the best professor of strategy for Chartered Accountancy course and continues to be rated as the same. He has traveled for Biofog seminar, Rasmus seminar, Appendix seminar, Delbrick, and for conducting leadership workshops across the world in countries like USA, Germany, France, Austria, London, Switzerland, Poland, Italy, Hong Kong, China, Singapore, Thailand, Indonesia, Dubai, Oman, and Nepal, besides others. Now about CA Vivek Khuranaji. He is the founder of CA Sansar, doing social service via social website CA Sansar from the last 10 years, both students and members. You can see a single window for CA members and students pursuing CA. Daily updates are available here. After becoming CA, you need a job that is also there. And then for marriage, matrimonial section is also there. He was elected NIRC member and also remained vice chairman of NIRC of ICAI. He speaks on various topics like ICAI MOU with Australia, Canada, Ireland, and also guides us all regarding PR of these countries. He also speaks on other topics like homeopathy, MSME, and others. Today, we will discuss on how to clear the exams with creativity, concentration, and self-confidence. And now, hand over to Vivek. Thank you very much, C.S. Tuti Mahajan ji, for such a wonderful welcome. And today I am so delighted to speak with our brother and our motivational guru, P.S. Rathore ji. Sir, thank you very much and a warm welcome. Today we both will discuss. And first of all, my best of luck to all the students who are appearing for this exam. And one thing I want to clear, even messages were started, whether exams will be postponed or not, whether the exam will be there or not. See,
ICAI will take the decision on appropriate time. Neither Rathore Saab nor me. We are not aware about that. We are here only for this webinar. Clear the exam with stability, concentration, and self-confidence. So my request to all of you, please ask these type of question कि whether exam will be postponed or not. Exam postponed भी होंगे तो भी आपको exam देने. Either it's in July or August or in November. You have to clear the exam. Your goal is to clear the exam. We all know it's very tough time and nobody knows what's next. But yes, let's hope for the best. And I just want to, before going to this one, hand over to Rathore Saab because he will guide us more. I just want to share 1, 2, 3 things. Like for this exam or in November or in May, I can say that one शेर आपने सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. कि आप इतना प्रिपेयर करें अपने आप को कि ICAI आपसे पूछने लग जाए कि बताओ आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछे. इस टाइप से आप प्रिपेयर करो. एंड राठौर साहब, आपको तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है. सबसे ज्यादा आइडियाज, सबसे ज्यादा प्लानिंग कब आती है हमारे टाइम? ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम. एग्जाम टाइम में हमारा माइंड ऐसे दौड़ता है कि एग्जाम फिनिश होते ही मैं ये करूंगा, आई विल बिकम द एंटरप्रेन्योर्स, आई विल डू दिस थिंग. बस रिमूव ऑल दिस थिंग, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम. एक ही फोकस करना है कि मेरा एग्जाम है, दैट्स इट. वो कैसे फोकस करना है, दैट वी विल डिस्कस. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू. जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या करोगे या क्या बनना चाहोगे अगर आपको अगला जन्म मिलता है, देन यू नो व्हाट ही सेड कि मैंने जो अभी किया है मैं उसको ज्यादा फोकस और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करना चाहूंगा. तो फॉर दैट वी हैव विद अस आवर मोटिवेशनल गुरु PS राठौर जी, एंड दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन. सो राठौर साहब, it's over to you. Let's start with and guide the students how to do this. Yes, please. Vivek sir, thank you very much. Stuti ma'am, very good, very warm. Good evening. पहली बात तो ये, आपने इतना बड़ा बात कह दिया, विवेकानंद के लिए बात कर दिया. जब आप कह रहे थे विवेकानंद तो मुझे लगता विवेकानंद और विवेक सर एक ही तो है हमारे लिए. ये उधर आ लगा हुआ है, इधर कोई दिक्कत नहीं है. एनीवे सर, आप भी बहुत नए काम कर रहे हैं. आप लोगों की जब मैं समर्पण देखता हूँ तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि वो कौन सा मोटिवेशन है जो आप लोगों को इतना प्रेरित करता है इस काम को करने के लिए. यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, वरना एक दूसरे का अप्रिशिएट करते करते वक्त निकल जाएगा. पहला सवाल कि कंसंट्रेशन कैसे बने. दूसरा सवाल, स्टेबिलिटी कैसे आएगा. तीसरा सवाल, फियरलेसनेस कैसे आएगा. चौथा सवाल, सर अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कैसे करें. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बात बता दूं दोस्त, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना तो ध्यान से सुनना. अगर 2 महीना पहले एग्जामिनेशन से अगर आपने मोबाइल से नेट डिलीट कर दिया ना तो थारा को कोई भी पास होने से रोक नहीं सकता. ये जो बीमारी है ना कि एक क्वेश्चन सवाल करके मोबाइल जरा देख लूं और जो मैसेज भेजा था उसका ग्रीन टिक देख लूं. अच्छा, ग्रीन टिक उसने सिस्टम लगा रखी कि ना लगेगा तो थारा अंदर जाके देखते हो रीड दिखा रखा है ना दिख रखा है. एक बात बताओ साहब, जो दिमाग का खेल है ना वो दिमाग ही खेलता है. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बात कहता है कि अगर आप कहते हो कि ऐसा चाहिए तो कहता है तथास्तु. आप जब कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हो तो लास्ट में निकलता आता है यू वांट टू सेव और यू डोंट वांट टू सेव. लेकिन अगर खुदा से आपने मांग लिया, भगवान से आपने मांग लिया, चीजों से आपने मांग लिया तो ये भी नहीं पूछता कि यू वांट इट और नॉट. द मोमेंट यू से आई वांट, वो आपको मिलता है.
अगर आप सफलता मांगते हो तो सफलता मिलता है, फेलियर मांगते हो तो फेलियर मांगता है, गर्लफ्रेंड मांगते हो तो गर्लफ्रेंड मांगता है, गर्लफ्रेंड पे डाउट करते हो और कहते हो भगवान ये जिंदगी से चली जा तो चली जाना मांगता है। लाइफ बहुत सिंपल है साहब, जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायलॉग के बजाय ना थोड़ा टेक्निक में ज्यादा विश्वास करता हूं, इसलिए मेरा सेशन जरा टेक्निकल होता है। एक बार छोटी सी बात आपको बताता हूं। जैसे कई लोग सॉल्यूशन पूछते हैं, साहब मोबाइल से कैसे छुटकारा पाऊं, डिस्ट्रैक्शन है। अरे साहब, मोबाइल को पाला किसने है? वो तो बस गिरा तो गया, छोड़ दो गया। आप अपने शरीर को, अपने आत्मा को, खुद ही अपने आप को इतना कमजोर बना दिए हो कि कोई आपके ऊपर अप्रिशिएट करता है आप खुश हो जाते हो, कोई गाली देता है आप दुखी हो जाते हो, पीछे से कोई आपको क्रिटिसाइज करता है आप सुन ले तो आप दुखी हो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने रीतियों को, रिवाजों को, सिद्धांतों को, पद्धतियों को आपने छोड़ा है। दोस्तों, मैं इसके बाद जब आऊंगा मैं 5 मिनट और बोलूंगा और फिर मैं सोचता हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं विवेक सर को बुला रहा हूं, क्योंकि विवेक सर विवेकानंद की याद दिला दिए थे मुझे, तो मैं अकेले नहीं बोलूंगा। मैं चूंगा मैं क्यों थकूं, मैं विवेक सर को बुलाऊंगा। अभी में जगह टाइम मिली तो स्तुति मूवी मैम को भी बुलाऊंगा कि मैम हाँ तो बोल दो कम से कम। एक बात बताइए, एक बार शिव पार्वती के घर गए, पार्वती पे विद्युत माली ने आक्रमण कर दिया था और वो निश्चित अवस्था में थी और उनके पिता हिमावन पे भी अटैक हो गया था। नाउ जब आपको नहीं शिव की गर्लफ्रेंड है पार्वती जी, तो शिव जी जो तो जाएंगे ही जाएंगे, तो शिव जी गए और बचा लिया उन्होंने। फिर नारद मुनि ने वहां कहा कि प्रभु आप इनकी सारी समस्याओं का समाधान करके आप क्यों नहीं जा रहे? तो शिव ने एक बात कहा कि मुनिवर, मुझे पता है कि आपके पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं पचती, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं, आप इनको यह मत कहना कि मैं आया था, बट इनको यह बात जरूर कहना कि इंसान की सारी समस्याओं का समाधान उसके अंदर ही है। अब ये अंदर कहां है? फिर से बताता हूं। शिव ने दधीची को रेफरेंस दिया, एक शास्त्र पढ़ाई और उस शास्त्र को पढ़ाने के लिए पार्वती के पास विष्णु जी ने भेजा और उस शास्त्र का नाम है चक्रास। हमारे शरीर के अंदर वो सारे चक्रास हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एक खास जगह पे प्रेशर डालना पड़ेगा। आपको अपने कंपन को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ब्रीदिंग को, अपने इमेजिनेशन को लेके जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल चाहिए, ताकि मैं किसी की क्रिटिसाइज ना करूं, कभी भी कहीं पे भी, सुन रहा है ना सुन रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो उसका वाइब्रेशन एंड वेव वहां तक जाता है। अपने थॉट और इमोशन पे कंट्रोल कैसे करूं? क्योंकि उसको कंट्रोल कर लिया तो कंसंट्रेशन बन गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर विल पावर हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो, तो वो नाभि में होता है। उस पर आप कैसे फोकस करोगे, कैसे उसको लेके आओगे, वो भी हम तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। अगर केयर और कंपैशन चाहते हो करना और फिर आगे, तो आपके सीने में है, दैट्स कॉल्ड द हार्ट चक्रा, हृदय चक्रा। आप चाहते हो कि आप कम्युनिकेट कर सको, अपनी बातों खुद से कह सको, दूसरे से कह सको, तो वो आपके पास थॉट चक्रास में है। ये सारे टेक्निकल चीजें होंगी, ये टेक्निकल बातें होंगी और हम उसको एक एक करके हम लेके आएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। आप चाहते हो कि परिस्थितियां विपरीत आने के पहले ही मैं देख सकूं कि उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा और कौन सी विपत्ति मेरे पास आने वाली है और मैं समाधान निकाल सकूं, तो वो भी आपके अंदर है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डिटैचमेंट चाहते हो, कंप्लीट डिटैचमेंट, नो एक्सपेक्टेशन बट द 100% कर्मा, दैट व्हाट द कृष्णा सेज इन महाभारत, कि कर्मों पे आपका अधिकार है, फल तो देखो आता ही रहेगा, नहीं आएगा वो बात का है, लेकिन आनंद तो कर्म का ही है साहब। अब कई लोग कहते हैं साहब मैं फोकस कैसे करूं, कंसंट्रेशन कैसे करूं, मैं फास्टिंग करता हूं और मैं कई चीजों पे कंट्रोल करता हूं। साहब कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा कहते हैं कि तुम खाना मत छोड़ो,
खाना बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन जो खाने का टेस्ट आता है ना उसको छोड़ो। जब आप खाने के टेस्ट को छोड़ोगे ना तो फिर खाने के प्रति किसी भी तरह का आपका अटेम्प्ट नहीं होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये बात बहुत आराम से बात कह रहे हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। हम पहली बात करेंगे कि स्टेबिलिटी एंड फियरलेसनेस कैसे आए, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको कैसे आएगा उसके लिए एक फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला ये है TSFBI, यानी कि आपको थिंक करना पड़ेगा, आपको सी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा और आपको इंटेंस एक्शन देखना पड़ेगा। तो इसके पहले कि आप याद करें फॉर्मूला TSFBI, 5 बार बोलिएगा TSFBI, TSFBI, TSFBI। मतलब you have to think that you have already it, you have to see that you have already it, you have to feel that you have already it, and you have to believe that you have already it, and you have to come into the action as if already you have it। तो आपको ये सारी चीजें आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बार विवेक सर को लेना चाहता हूं। हाँ विवेक सर, आप एक बात बताइए, अगर अपने विचार में, अपने थॉट में, अपने स्टेबिलिटी में आपने बहुत कुछ किया है अपने जिंदगी में, एक बात बताइए, जब आपने सोचा था कि मैं सीए बनने के बाद मैं कॉर्पोरेट में ना जाऊं, मैं बाकी ना जाऊं, और आपने विश्व पितामह की तरह बोला मैं परिवार भी नहीं बनाऊंगा और सीए को ही अपना परिवार बना लिया, तो एक बात बताइए, आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी कैसे लेके आए? जब आपको भी तो लगता होगा कई बार यार सेल्फलेस काम करे जा रहा हूँ, कोई इज्जत देता है, कोई इज्जत नहीं देता, कोई बैठने के लिए बोलता है, कोई बैठने के लिए नहीं बोलता। आप कई जगह जाते होंगे जहां आपके दोस्त आपको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन अचानक आपसे बड़ा रुतबा का कोई बंदा आ गया तो आपको सेट असाइड करके उसको इज्जत देना शुरू किया। सो हाउ यू फील योरसेल्फ स्टेबल? आप अपने आप को स्टेबल कैसे फील करते हैं? यस, अभी आपने डिस्कस भी किया रिगार्डिंग द थॉट्स। जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। करेक्ट। अगर हमने गर्लफ्रेंड की इच्छा करी तो गर्लफ्रेंड मिल गई। अगर मेरा फोकस था टू डू द सोशल स्टडी, राइट, थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट वांट टू से दैट रिमूव द नेगेटिव थॉट्स। आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको रिमूव करना है, एंड ऑलवेज से टू योरसेल्फ यस आई कैन एंड आई विल। आपको हमेशा ही बोलना है कि यस मैं ये करूंगा, मेरे को करना है। मेरा फोकस, इवन टचवुड, जो भी हमने सोचा, जो भी हमने रिगार्डिंग सीए संसार, जो भी गोल हमने सोचे कि ये करना है, वो कर रहा है, NIRC लड़ना, इलेक्शन जीतना, एवरीथिंग एक थॉट ऑफ प्रोसेस था हमारा। दैट्स द पॉजिटिव थॉट्स। एंड इवन आई वांट टू से टू अवर यंग स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स के लिए, जस्ट आस्क योरसेल्फ whether I am mentally fit, whether I am physically fit, then whether I am spiritually fit। जब सब कुछ है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये? इसी बात पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, इसी बात पे ऐड कर रहा हूँ, फिर आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। यस प्लीज। मैं एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं ना कोई बच्चा, तो मैं चक्रा शास्त्र का, एनर्जी शास्त्र का एक नुस्खा दे रहा हूँ। Yes. आगे विवेक सर की कहानी होगी और मेरे नुस्खे होंगे। हाँ विवेक साहब, देखिएगा, रात को सोने जाने के पहले नीचे से नीचे अपने पांव को धोइए और एड़ी को रगड़िए। दादी ये करवाती थी, आप खुद कीजिए। जब आप पानी से धोएंगे तो वाटर एनर्जी आपके बॉडी में जाएगा। और रात को सोते समय लेफ्ट करवट आधा घंटा सोइए। अर्धनारीश्वर के फेस देखे होंगे तो लेफ्ट साइड पास यानी वाइफ का है, यानी फीमेल का है, राइट साइड मेल यानी कि शिवा का है, राइट साइड फ्यूचर को देखता है। तो जैसे कि विवेक सर ने कहा कि जो अतीत पेन देता है उसको भूल जाइए और उस पेन के विश्वास पे भविष्य का निर्माण कीजिए। तो विवेक सर ने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही आप लेफ्ट करवट पे सोएंगे, जैसे ही आप लेफ्ट करवट पे सोएंगे, आपका अतीत बंद हो जाएगा और वहां पे आप विजुअलाइज कीजिए कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, और वहां पे फॉर्मूला यूज कीजिए TFBI। रात को सोते समय बिल्कुल रिलैक्स होके, ये नहीं मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, नहीं, आराम से सोइए और विजुअलाइज कीजिए अपने आप को एज इफ, think as if you have already, you want a degree as if you have, you want a full concentration
as if you already have. You want to make yourself successful as if already you have. ऐसे आपको सोचना है. तो आप फॉर्मूला बना लीजिए as if I have. अभी आप क्या सोचते हैं, नहीं हुआ तो एग्जाम होगा या नहीं होगा? अरे होगा तो ठीक है भाई, ना होगा तो ठीक है भाई. एक तो छोटी सी बात है. और 90% इस तरह के पोहापोही में वही लोग हैं जिनका एग्जाम एक दो बार लटका हुआ है. एग्जैक्टली लटका हुआ है. काहे को सोचने का है इतना? मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको राठौर साहब, बताइए. अभी मैंने एक दो मैसेजेस तो डिलीट करे हैं. अगेन सेम मैसेजेस कमिंग कि एग्जाम पोस्टपोन, कोर्ट में रिट फाइल कर दो. अरे आईसीआई आपके दुश्मन नहीं है, ही इज योर पेरेंटल बॉडी. वो जो सोचेगी अच्छा सोचेंगे आपके लिए. अगर एग्जाम होने, आपका क्या फोकस, अभी बात कर रहे हैं, आपका फोकस कर्म करना है. एग्जाम होंगे तो सबके लिए होंगे, एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो सबके लिए पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे तो सबके लिए होंगे. कोई विवेक खुराना, पीएस राठौर, स्तुति महाजन के लिए इंडिविजुअली कुछ नहीं होना फोकस. हमारा काम है बस फोकस करना ओनली फॉर एग्जाम. अगर आज नहीं देंगे तो एक महीने बाद देने पड़ेंगे, नवंबर में देने पड़ेंगे. एग्जाम तो देने पड़ेंगे आपको. ये तो कह नहीं सकते लाइक जैसे तमिलनाडु ने 10th क्लास में सबको पास कर दिया, सीए में भी सबको सीए बना देंगे. पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बिकॉज दिस इज द प्रोफेशनल एग्जाम, नॉट द 10th क्लास एग्जाम. सो आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टार्टिंग में आपको बोला आपको प्रिपेयर रहना है, अपने पास हमेशा प्रिपेयर रहना है. लाइक महाभारत में युद्ध है तो आपको प्रिपेयर रहना है, चाहे आज हो, कल हो, परसों. आई एम रेडी फॉर दैट. क्यों आप सोच रहे हो इसके लिए? अभी भी मैसेज देखिए, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दो, पोस्टपोन करवा दो. कुछ नहीं होना. हमारे वेबिनार का पर्पस है क्लियर द एग्जाम. यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट. नो इट्स ऑलराइट. एक चीज और भी है सर, आपने पिटीशन की बात कहा, मैं अभी आप थॉट पे देखिए, उसी पे आते हैं. एक लाइन बोल के जा रहा हूं. पता नहीं हमारे सीए के बच्चों में हर जगह में लीगल कोर्सेस, केस कर दो, कोर्ट कर लो. मदर बॉडी है सीए. सर झुकाओ यार, सर झुकाओ. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वही है. एनीवे, एक मिनट सर, एक मिनट. अभी फिर एक मैसेजेस में मैं आपको दिखा देता हूं. अब ये लोग कह रहे हैं इजी टू से फोकस. अब हमने भी तो एग्जाम पास किया है, हम तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे. क्या नाम है इनका? उलूवर समथिंग. हाँ. तो वी आर नोट, आपको कोई हाइपोथेटिकली कोई बात नहीं कर रहे, हम आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. फोकस करना पड़ेगा. माइंड में हमेशा थॉट्स आएंगे आपको, आपका सिर्फ माइंड रहना चाहिए. लाइक अर्जुन को लोग हंसते थे कि तुम्हें मछली की आंख क्यों दिख रही है, किसी को पेड़, किसी को पत्ते, किसी को क्या दिख रहा था. तो उसका फोकस है, वो फोकस वही बता रहे हैं आपको कैसे कंसंट्रेशन करनी है. अभी राठौर साहब ने बताया कि आपको कैसे सोना है, कैसे आपको पांव की एड़ी क्या करना है, वो सब आपको बता रहे हैं. फोकस करना ही बता रहे हैं. यस सर. अगेन साहब, आपका मैसेज मेरे स्क्रीन पे भी आया था. अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगा तो खुदा बोलेगा तथास्तु. यस सही होता. हमने विवेक सर ने शुरुआत करी थी, बड़ी क्लियर बात है. इफ यू थिंक इट विल हैपन, इफ यू डोंट थिंक इट विल नॉट हैपन. सिंपल. मैं साहब थिंकिंग बहुत बड़ी चीज है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता. बच्चों को बोलिएगा, धोनी मूवी में जब 2011 में धोनी उतर के आ रहा था क्रीच में खेलने के लिए, तो वो यो इमेजिन कर रहा था कि वो कृष्णा स्पोर्ट्स का नाइट में जाकर के जो गेम खेलते हैं वो गेम खेल रहा है. लाइफ इज ऑल अबाउट थिंकिंग. अगर आप ये सोचते हो कि नहीं होगा, या शायद नहीं होगा, या शायद होगा, तो नहीं होगा. यस. फॉर्मूला बहुत क्लियर है. यू हैव टू थिंक ऑलरेडी यू आर डूइंग इट. यू हैव टू सी यू आर ऑलरेडी डूइंग इट. You have to feel you are already doing it, already you have it, and you have to believe that you have already it, and you have to take an intense action if already you have it. So make it very clear. If you think it is very easy to say but difficult to do, so you're doubting yourself. And I'll tell you, I'm just telling you about the way how it is done. And if you practice, you're going to do it. In fact, to tell you all this, neither Vivek sir has taken money nor me has taken money because I'm a friend of Vivek sir. But the fact is that I'm sitting on my chair of profession
Many colleges and university calls me and my staff ask, deposit the payment. Without payment, even we don't come on the Zoom. No, we don't come. We don't come. I'm not boosting myself, but I believe the payment has to be involved. Because जब पॉकेट से पैसे जाते हैं तो जो उपचार बताए जाते हैं ना उसका यूज होता है. होम्योपैथ मेडिसिन इसलिए नहीं चला क्योंकि उसके प्राइस कम थे, लोग लेके भी खाते नहीं थे. साहब बहुत सिंपल सा वाला विवेक सर, अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा. अगर आप पहले सोचेंगे कि नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं इसको केस कर दूंगा, रिट फाइल कर दूंगा, साहब जिस दिन निगेटिव थॉट माइंड में चला गया ना, माइंड उधर ही जाएगा और लोग आपको यूज करेंगे और आप यूज करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे. तो एनीवे, आई एम कमिंग टू अ वेरी सिंपल पॉइंट इज दिस कि आपको अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो रात को पांव धोने पड़ेंगे, एड़ी को रगड़ने पड़ेंगे, लेफ्ट करवट में सोने पड़ेंगे और अपने सपनों को खुद आपको देखने पड़ेंगे. और सपने को देखते समय आपको थिंक करना है, आपको सीख करना है, आपको फील करना है, आपको बिलीव करना है और आपको इंटेंस एक्शन लेना है. अगर इंटेंस एक्शन नहीं लेंगे तो भी नहीं होगा, चूंकि सपने तब पूरे होंगे जब आपका एनर्जी का लेवल हाई होगा. और जैसे ही आपने ये काम किया, आपने एनर्जी अपने शरीर को दे दिया. तो बहुत सिंपल सी बात यहां पे ये बात आपको कही गई. अब अगेन, जब आप सुबह उठेंगे तो देखिए कंसंट्रेशन बनानी है तो डायरेक्शन क्लियर करना है. तो सुबह उठेंगे तो पाम को आप ऐसे रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद में जब इसकी गर्मी होगी तो इसकी गर्मी को आपको क्या करना है, आपको आईबॉल पे रख करके फील करना है और वही फॉर्मूला यूज करना है. थिंक दैट यू आर फोकसिंग, थिंक यू आर गेटिंग इट, see that you are getting it, feel that you are getting it, believe that you are getting it, and intense actions. and आराम से ऐसे लेते हुए अपने हाथ में अपने दुनिया को आपको देखना है. अगर आप ये करेंगे तो आपको दिशा मिलेगा, दशा मिलेगा, and then exactly you will be doing something of your life. And please, if you think it is impossible, never in the life will get it. Life is all about the thinking. Life is all about the thinking. सो फोकस और कंसंट्रेशन के ये तरीके बताए गए हैं आपको और इस तरीके को आपको देखना पड़ेगा. सिर्फ 2 पॉइंट को हम अगली बारी में अभी तुरंत आएंगे थोड़ी देर के बाद स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी एंड फियरलेसनेस आप अपने शरीर में कैसे लेके आएंगे. स्टेबिलिटी एंड फियरलेसनेस आप अपने शरीर में कैसे लेके आएंगे. स्टेबिलिटी एंड फियरलेसनेस आप अपने शरीर में कैसे लेके आएंगे. उसके पहले हम आते हैं फिर से. विवेक सर, एक छोटी सी बात बताइए, जब आपको डर लगता हो कहीं जाने में या ये बहुत लाजिमी है कि इंसान को डर लगता है. कोई कहे किसी को बिल्कुल डर नहीं लगा तो डर लगता है. इलेक्शन लड़ते हैं, पता नहीं जीते ना जीते, लोग कहते हैं मैं 50 वोट दूंगा लेकिन जाते वो जाए या बेकार आ गया ये. सो आपको भी डर लगता होगा. इस डर से आप कैसे निजात पाते हैं? हाउ डू यू फील इट, हाउ डू गेट इट? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, सबसे डर को भगाने का तरीका है डर से ही भगाया जा सकता है. जब तक फॉर एग्जाम्पल समुंदर के बाहर बैठ के हम नहीं देख सकते कि उसकी कितनी गहराई है, या बिना उसके अंदर गए हम नहीं मोती नहीं निकाल सकते. हमें उसके अंदर जाना ही पड़ेगा. करेक्ट. तो डर को अगर भगाना है तो डर को देखना पड़ेगा कि क्या डर है. अगर मैं आज फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इलेक्शन, मैं यही सोच लूं कि नहीं वोट नहीं आएंगे, मैं रह जाऊंगा, अगर स्टार्ट में ही मैंने यही सोच लिया तो मैं तो पहले ही हार गया. करेक्ट. अब देखिएगा विवेक सर, एक छोटी सी बात है. स्तुति मैम, आप शादीशुदा हो या मैरिड हो, अनमैरिड हो? आप मैरिड हो? मैरिड है. मैरिड हो. अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज. तो आपको शादी से डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर लगता है. डर लगता है दूसरे के घर जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा. आपको बताऊं, हमारे समाज में रिचुअल्स है मैरिज में उस डर को भी भगाने के लिए. डर कहाँ होता है? डर कमर में होता है. और यही कारण है कि शादी के समय में आप लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज जो कमर में डर है वो रूट चक्र है, मूल धारा है.
अगर किसी भी बच्चे को अगर डर लगता है तो मैं जो कहता हूं करे, 21 दिन के अंदर डर खत्म हो जाएगा। और ये कोई नया बात नहीं है, मैं वही कह रहा हूं जो हमारे रिचुअल्स में है। देखिएगा डर भगाने के नुस्खे क्या है। जगह देखिए कमर पे है। तभी कोई जब हमें धोखा देता है, ट्रस्ट तोड़ता है, तो हम कहते हैं इसने मेरे कमर तोड़ दिए, इसने मेरे कमर तोड़ दिया। ध्यान से, डर को भगाने का जगह जो है वो कमर है, चक्रा जो है तो रूट चक्रास है, एलिमेंट जो है वो अर्थ है, भूमि है, कलर जो है वो रेड है, और सेंस ऑर्गन जो है वो स्मेल है। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के इमेजिन करे कि गार्डन में ना जाए, चल जाए तो बहुत बढ़िया, इमेजिन करे कि गार्डन में पूरे साले लाल रंग के फ्लावर गुलाब खुले हुए हैं, देखे उनको, उस गुलाब को देखे। जैसे एग्जाम के समय में बच्चा क्या करता है, किताब से फोकस हटके ना वो उसको उससे ज्यादा प्यार हो जाता है, वो देखने लगता है, दीवारों को देखता है, उसे लगता है यार ये दीवार टेढ़ा कैसे हो गया, तो दीवार टेढ़ा कैसे हो गया, ये उसको ऐसा लगता है कि टेढ़ा क्यों हुआ, हाउ इट इज। उस बस इमेजिनेशन में जाकर के गुलाब को देखे, घुटने के बल बैठ जाए, घुटने के बल बैठ जाए, और ऐसा इमेजिन करे कि गीला है और जिन पे मिट्टी लग रही है, क्योंकि अर्थ इसका एलिमेंट है। गुलाब के फूल को अपने हाथ में ले और डीप स्मेल करे, और इस ब्रीथिंग को अपने कमर तक लेके जाए, जो पीछे कमर है वहां तक लेके जाए। और जब ये 5 बार ऐसा करेगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, फियरलेसनेस आएगा। और ये अभी नया नुस्खा नहीं है साहब। जब हम छोटे थे तो हमारी परवरिश कलकत्ते की थी, पिताजी कालीघाट लेके जाते थे, वहां जावा कुसुम के लाल लाल रंग के फ्लावर होते थे, हम लोग टोकरी में लेकर के गर्भगृह में जाते थे, और पूरे स्मेल हमारे शरीर में आता था, और जब बाहर आते थे तो आत्मविश्वास, हमारे पास फियरलेसनेस होता था, स्टेबिलिटी होती थी। तो विवेक सर, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को जरूर बोलिए, हालांकि आप इस स्टेबिलिटी को जी रहे होंगे। अगर स्टेबल माइंड रखना चाहते हैं तो सुबह उठ करके जमीन से जुड़े हुए लाल रंग के फ्लावर को इमेजिन करें, और उसको स्मेल करें, और पूरे शरीर में स्मेल करें, और ये फील करें क्या, थिंक दैट ही इज स्टेबल, थिंक ही इज फियरलेस, थिंक, सी दैट आई एम फियरलेस, आई एम स्टेबल। एग्जाम होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। काय को चिंता करने का, केस करेंगे, रीट फाइल करेंगे, भाई थारे को पास इतना टाइम है तो कर ले। यानी कि दिमाग में तो है नहीं। एक छोटी सी बात है साहब, नेतागिरी से सीए की एग्जाम पास नहीं होगी, सीए पास करने के बाद नेतागिरी कर लियो भाइयों। कई लोग ऐसे हैं, जाके लाइब्रेरी में देख लेना, 10 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी तो हो रही, सीए नहीं हुई। साहब फोकस कर ले भाई, एकदम फोकस कर ले, एक छोटी सी बात है। और ये नुस्खा पहले भाई लाल रंग के फ्लावर को इमेजिन कर ले, और यही कारण है कि स्फीयर को भगाने के लिए शादी में भी आप देखिएगा लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते थे। अगर आप ये रेड कलर का सिग्निफिकेंस देखना चाहते हो तो वो इन यूएसए दे हैव अ डिग्री कोर्स में रूट चक्रास है, और हर जगह रेड कलर उन्होंने लगा रखी है। तो जो हमने पहली बात कही थी कि स्टेबिलिटी कैसे लेके आना है, हमने ये जो बात कही थी कि फियरलेसनेस कैसे आना है, उसका नुस्खा हमने आपको बताया। जनाब आजमा के देख लो, पक्का 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 आपके जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगा, फियरलेसनेस आएगा। ना इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं विवेक सर से फिर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। विवेक सर, एक छोटी सी बात बताइएगा ब्रीफ में कि अगर जिंदगी में आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपके थॉट के विपरीत कुछ काम हो गया, तो आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू। या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन आपने बोल दिया, या कई बार लगता है मुझे बोलना चाहिए था मैंने नहीं बोला, तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू दैट। Next time to control our thoughts. वेरी सिंपल। विवेक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अगली बार हमें बोलना ही नहीं है। दैट्स द लर्निंग है। क्योंकि वो बिटरनेस था
वो बिटरनेस में दिमाग में आ गया। मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट में कोई भी मेल सूट, क्या जवाब दिया सर आपने। मेल सूट करने के पहले मैं सीईओ को बोलता हूं कि मेल को सेंड बटन दबाने के पहले एक बार खुद से वो व्यक्ति बन जाइए और व्यक्ति बन के पढ़ के देखिए। Exactly. आप अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। अगेन रूट चक्रास के ऊपर इसको कंट्रोल करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्रास है, और बचपन से मम्मी इस बात को सिखाती थी कि किस तरह से स्वाधिष्ठान चक्रास को कंट्रोल करना है। घर में 56 भोग बनते थे, लेकिन आप तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि पंडित जी खाना नहीं। आज मैं घर में बच्चों को देखता हूं, उनके मोबाइल गेम ना चले तो फोन उठा के पेरेंट्स में मार देते हैं। साहब अपनी हिम्मत नहीं थी। नतीजा सिर्फ सिंपल है कि कंट्रोल का प्रोसेसेस खत्म हो गया। प्रोसेसेस खत्म हो गए कंट्रोल के, तो सेल्फ कंट्रोल बचपन से ही नहीं है। मैं कॉर्पोरेट में देखता हूं कि मैं देखता हूं आप IIM कर लो, IIT कर लो, कुछ भी कर लो, दैट्स योर चॉइस, CA कर लो, MBA कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब घर की परवरिश में कंट्रोल करने की ट्रेनिंग बचपन से ना दी गई होना, तो फिर क्या होगा। हर चीज जिंदगी में चाहिए, नहीं मिले तो विचित्रता की अवस्था होती है। किसी ने FB पे ब्लॉक कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे होगी, मैं 10 जगह से उसको ब्लॉक करूंगा। किसी ने आपको लिंक्डइन पे ब्लॉक कर दिया, उसने हिम्मत कैसे हो गई। मैंने कहा उसने किया क्यों नहीं। इंस्टा पे उसने ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि ये बचपन से हमने कंट्रोल नाम की चीज को पढ़ा ही नहीं साहब। तो हमारी दादी इस तरह से कंट्रोल प्रोसेस सिखाती थी। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में, तो इसकी भी कला है, इसका भी नुक्सा है। नुक्सा क्या है साहब। इमेजिन कीजिए सुबह उठ करके कि आप गार्डन में हैं और पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का प्लांट है। ऑरेंज कलर नहीं, ऑरेंज का प्लांट है, और उस ऑरेंज के प्लांट को, ऑरेंज पक्का एकदम ऑरेंज कलर का ऑरेंज निकला हुआ है, आप उसको तोड़िए, तोड़ के उसको लीजिए, ऑरेंज को लीजिए, इमेजिनेशन में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेके आइए और ऐसे लेके उसको पीजिए, और जैसे ही खट्टा लगे, इमेजिन की खट्टा लगे, फिर मुंडी को ऐसे वो खट्टा है, और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। देखिएगा इसका जगह स्वाधिष्ठान का नाभि के नीचे है, फोकस कीजिएगा, कमर के ऊपर है। इसका एलिमेंट वाटर है, तभी मैंने कहा वो जूस आपको निकालना है। इसका कलर ऑरेंज है, कलर ऑरेंज है, और इसका सेंस ऑर्गन टेस्ट है। अगर आप इस पे क्रिएट करके अगर अपने आप को कंट्रोल करेंगे, इमेजिन कीजिए कि आपने खट्टा ऑरेंज लिया, फिर भी यू कंट्रोलिंग इट, और लाइफ में ये सोचो जो नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से कंट्रोल सिस्टम अपने लगा रखे हैं, मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको हमेशा करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू वर्क ऑन पार्ट ऑफ दिस। जो फर्स्ट में आया था कि इट्स वेरी इजी टू से, आई नो इट्स वेरी इजी टू से, बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। व्हाट डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क, इमेजिन नहीं करूंगा। हमें मेहनत नहीं करनी, रिजल्ट मिलना चाहिए थे। CA इंस्टीट्यूट फेल कर देता है जी। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं हुआ, एक आध लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते साहब, जनरलाइज नहीं कर सकते। जो आपका कर्म है आप ही को करना होगा साहब, आप ही को करना होगा। और कर्म करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि खुदा को, जीसस को, गॉड को, शिवा को कुछ और मंजूर है साहब। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ये प्रोसेस करने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसके पहले कि हम थर्ड चीज पे जाएं, दैट्स डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये आप जिंदगी में चाहते हैं, डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपको फिर एक प्रोसेस करने पड़ेंगे। ये प्रोसेस क्या होंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। हम तब तक एक सवाल लेते हैं विवेक सर से कि विवेक सर, जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि विवेक सर की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, इज्जत इसलिए करता हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। मैं विवेक सर के ऑफिस में गया एक बार, और मैंने खुद इनसे छोटी सी बातें पूछी। देखो साहब, हम तो धंधे करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हम फोन पे भी बात करते हैं तो पैसे लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब उसका पैसा लगेगा तो मेरे कहे गए काम को इम्प्लीमेंट करेगा। And that's the reason we are termed as a management guru, right, in the corporate. And if you are young enough, you go in a corporate and ask this. Even nowadays, who say pro bono कर दो? Pro bono क्या होता है साहब? बोला नहीं, पैसे नहीं देंगे। बोला पैसे नहीं देंगे तो हमारे पास और भी काम है ना, खाली थोड़ी बैठे हैं।
लेकिन विवेक सर को मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं कि आप इतने वेबिनार करते हो, आप चीजें करते हो, आपकी कमाई धमाई कहां से हो? वो बोले भगवान है ना, मेरा काम ही है समर्पण है, मुझे काम ही करना है, ऐसा मुझे ऐसे ही लेके चलना है। तो मैं बहुत बार इन जैसे महान लोगों को देखता हूँ, महान मैं हवास में कह रहा हूँ, बिकॉज जब आप अपनी इच्छाओं को त्याग देते हो, कमाने की इच्छाओं को त्याग देते हो और फिर आप काम करते हो सेल्फलेस भाव से, then finally I think that you have got something to give, you have got something to contribute. If you are really contributing it, you are really contributing it, you are really contributing it. Just a second. ठीक तो है ना? ठीक है. Okay. Now, yes. If you are busy, I can say something or not. If you are busy. मैंने आप ही को बुला के लेके आता हूँ. तो आप जब आपके जिंदगी में जब आता है, जब चीजें ये आती हैं, तो आपके जिंदगी में जब आपको आता है कि आपको डिटर्मिनेशन जनरेट करना है, आपको विल पावर जनरेट करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, जो कई बार आपके जिंदगी में लगता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ बेकार है यार, थैंकलेस जॉब है, लोग रजिस्टर कराते हैं आते नहीं है, लोग कहते हैं कि आऊंगा मैं आते नहीं है, आप स्नैक्स मंगवा लेते हो, डिनर मंगवा लेते हो, फिर भी कह के लोग नहीं आते। फिर भी अगली बार के लिए आप डिटर्मिनेशन लाते कहां से? आपने खुद ही बोल दिया, सेल्फलेस, हाँ, विदाउट एनी पर्पस व्हेन वी आर डूइंग, तो ऑटोमेटिकली जो हमें प्यार मिलता है कुछ लोगों का, कुछ मैसेजेस अभी देखिए, इवन एक लोग भी प्यार से लव यू कह देते हैं, वो हमारे लिए एक, यू कैन से दैट 1 लाख 1 करोड़, उससे भी ज्यादा हमारे लिए मोटिवेशनल पावर आ जाती है हमारे साथ साथ। तो दैट्स द थिंग, दैट्स द मोटिवेशनल पावर जो हमें मिलती है फॉर विद डूइंग द सेल्फलेस सर्विसेज। इसी को हम एग्जाम पर्पस में कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डूइंग प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं फॉर अवर एग्जाम्स एंड वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के जुलाई में एग्जाम्स है या किसी के नवंबर में एग्जाम है, तो माई रिक्वेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, फर्स्ट गो फॉर द प्लानिंग कि आपके पास कितना टाइम है, डू सम प्लानिंग वन लॉन्ग टर्म, like on monthly basis, then weekly basis and daily basis. Prepare your timetable chart कि आपने कितना टाइम स्टडी करना है, कितना मस्ती करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल, एक दिन अगर आपकी स्टडी नहीं हो पाई, जैसे अभी आपने कहा कि वो टिक देखने हैं, हो सकता है वो टिक ना देखा हो, माइंड आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, बार बार देख रहे हैं, तो इट्स ओके। ये नहीं है कि आपका एक दिन खराब हो गया तो नेक्स्ट अदर डेज आल्सो ओवर। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इवन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स कि आपने कैसे करना है। तो फ्यू थिंग इज देयर, फर्स्ट इज योर प्लानिंग। तो इसी को थोड़ा सा और मैं ऐड कर लूं अगर इफ यू परमिट मी। हाँ हाँ सर, कीजिए कीजिए। एक तो टू द स्टूडेंट्स डू द प्लानिंग कि आप अपना प्लान करिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए। एंड सेकेंड थिंग विच मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सेकेंड थिंग इज समरी, because you know CA exam is very tough exam. मैं तो CP ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, इनके ऊपर मैं बोलता हूँ। एंड यू कांट बिलीव, फ्री में डिग्रीज दे रहे हैं। हाँ, आपको लगता है CP ऑस्ट्रेलिया में वन एग्जाम इज देयर, ऑनलाइन एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम, नो टाइम लिमिट। आप अभी ओपन करिए, सारा दिन बैठिए, 50 लोगों को साथ ले लीजिए और एग्जाम के, और क्या है, एमसीक्यूज देने, 40 एमसीक्यूज, 75% पासिंग मार्क्स। तो ये एग्जाम्स है बाहर के, सेम सीपी आयरलैंड का। एंड आई कैन से सीए एग्जाम इज वेरी टफ, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड देन समरी, व्हाट आई वाज सेइंग, समरी कि आपने जो भी सिलेबस, क्योंकि यू आर आल्सो ए ट्यूटर, आप एटीसी क्लासेस चलाते हैं, आपको भी पता है कितना बड़ा सब्जेक्ट है। एंड एग्जाम डेज, अभी तो एक दिन की हमें लीव मिल जाती है, हमारे टाइम पे तो डेली एग्जाम्स थे, जब आपने भी दिए तो डेली एग्जाम्स थे। तो वी डोंट हैव द टाइम टू रिवाइज ऑल दिस, और हो भी नहीं पाएगा। एंड यू मस्ट गो फॉर द समरी, आपको समरी बनानी पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग विच आई ऑब्जर्व दैट वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन। कई लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑडिट करते हैं, एग्जैक्टली, टिक लगा दिया कि हो गया, ये हो गया। वो नहीं करना, उसको आपको सेल्फ आंसर करने हैं। इवन
आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम टाइम में टाइम ही नहीं मिलता। वो अभी कह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 months जब लॉकडाउन के बाद हम लैपटॉप ओपन करेंगे कि वो पहचानेगा या नहीं पहचानेगा हमें। तो हाँ 2 सही बात, महीने बाद जब हम एग्जाम लिखने बैठेंगे तो हाथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। सही बात है। That we have to do some practice. And one more important thing is module of ICI. आप पढ़िए, कोचिंग करिए, बट मॉड्यूल यू मस्ट गो थ्रू। राठौर साहब लोग को ऐड ऑन करूंगा, आप कोचिंग मत कीजिए, मॉड्यूल जरूर पढ़िए, पास हो जाएंगे। कोचिंग भी करिए, कोचिंग, बट यू मस्ट हैव गुड गाइडर। कई लोग कहते हैं छोड़ दो, वो ट्यूटर्स, मैं कहूंगा कुछ नहीं कहना चाहिए था, मैं वो भी हमारे गुरु हैं, बट इग्नोर दैट। आपके आईसीआई के मॉड्यूल अच्छे हैं बुरे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में, बट यू मस्ट गो थ्रू इट। आप उसको जरूर पढ़िए, आप कोचिंग लीजिए, स्टडी करिए, बुक्स लीजिए, बट मस्ट गो थ्रू द आईसीआई मॉड्यूल। सर And- अगर यस, एग्जाम पास करना है ना, एग्जाम पास करना है ना, मैं कह सकता हूँ आप दुनिया के किसी भी टीचर के नोट छोड़ दीजिए, आईसीआई के मॉड्यूल को कर दीजिए, आप पास हो जाएंगे। आगे बढ़िए सर। अब exactly, yes. And one more thing which I want, I am just sharing my personal experience, कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा प्लीज। One more thing is group study, जो मैंने फील करी है। आप ग्रुप स्टडी करिए एंड डिस्कस करिए, जितना ज्यादा डिस्कशन होगा आपके अपने आप सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। एंड जो आपने शुरू में बोला सोशल मीडिया, एग्जाम डे से एटलीस्ट 15-20 डेज बिफोर नमस्ते कर दो सोशल मीडिया को। बिल्कुल, अभी भी मैं वेबिनार कर रहा हूं तो ऐसे लग रहा है मोबाइल में से पूछ रहे हैं, हाँ जी सर ठीक हो ना, कहीं चले तो नहीं गए, तो मोबाइल में लगता है कि वो हमसे पूछ रहा है। तो प्लीज फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, कोई कहीं नहीं जा रहा, यही मिलेंगे सब आपको, सारे फ्रेंड्स यही मिलेंगे। सो Yes. माय रिक्वेस्ट, बाय बाय कर दीजिए सोशल मीडिया को, देन ओनली यू कैन डू। नाउ ओवर टू यू सर, फिर उसके बाद थोड़ा और मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, प्लीज। Yes. अब देखिएगा, जैसे कि अगर आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि आज मुझे इतना खत्म करना है और ऐसे खत्म करना है कि जब हम एग्जाम में सवाल पूछें पढ़ें तो ये पता लगे कि इसके लिए इनपुट क्या होगा, और अगर मैं इनपुट पढ़ रहा हूं तो मुझे ये पता लगे कि सवाल क्या आएगा। अगर इस लेवल का डिटर्मिनेशन चाहते हैं आप, इस लेवल का अगर आप कंसंट्रेशन चाहते हैं, आप इस लेवल का विल पावर चाहते हैं, इस लेवल का आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ी चीज है, आपको कुछ नुस्खे यूज करने पड़ेंगे। क्या? सुबह सुबह डिटर्मिन, आप आराम से ध्यान मुद्रा में हाथ रख करके बोलिए कि हे भगवान मुझे डिटर्मिनेशन दे कि मैं एग्जाम पास कर गया, एग्जाम में ऐसे लिख रहा हूं। डिटर्मिनेशन फील, थिंक कीजिए कि आई हैव। जब आप डिटर्मिनेशन थिंक करेंगे कि मैं एग्जाम पास करने लायक मेरी तैयारी हो गई है और ये क्वेश्चन आ गया तो मैं एकदम कमाल कर दूंगा, कमाल का लिख दूंगा, तो थिंक दैट यू नो दिस वेरी वेल, देन सी दैट यू नो इट वेरी वेल। उस कंसेप्ट को उठाइए। आप कोई भी कंसेप्ट खत्म करते हैं ना, तो उस कंसेप्ट को खत्म करने के पहले उसको खुद से देखिए कि think that yes, if this comes in exam I can write very well. See that you are in examination hall or you are writing it very well. Then feel that you have already written it, and then believe that you have already written it, and that you take an intense action to get through it, and feeling that you have already taken it. तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इसका, ये कहाँ है डिटर्मिनेशन? ये नाभि में होता है। तो आप डिटर्मिनेशन के लिए जब आप पूरा कंसेप्ट पढ़ गए हैं तो आप देखिए कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तो फोकस कीजिए नाभि में, और इसका कलर जो होता है वो होता है येलो, और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने बहुत सारा अग्निकुंड चल रहा है, फ्लेम जल रहा है, और उस फ्लेम के आर पार वो एक एक चीज आपका डिटर्मिनेशन फॉर योर सब्जेक्ट, कि मेरे को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। सर ने कहा कि समरी, उसी पे समरी आप पॉइंट का भी अलग से बनाइए और देखिए कि वो पॉइंट सीक्वेंस में आए। बट ऐसा ना हो कि एग्जाम में 10 में से 4 याद आए, पहला, दूसरा, तीसरा या 9वां बीच वाला गायब। तो साहब आप उसको सीक्वेंस कीजिए
इसीलिए मैं अपनी क्लास में कई बार पूछना क्या करता हूं, मेमोरी कोड बना के देता हूं कि एटलीस्ट पॉइंट आ जाए तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये कलर को तो, अच्छा, somebody is asking, please explain in English. Okay. Now, a very simple point is this: if you really want to have a determination, then exactly you have to think, you have to see, you have to feel, you have to believe, and you have to act that already you have. And if you think like it will happen, if you don't think like it will not happen, and to think that you are determined with all your content, all your thing, think that before you there is a fire, behind the fire all success points are there, somebody is there, everything is there, and imagine the color is yellow and the fire element, and listen to the sound of that fire and feel that the whole concept is very clear, very clear, very clear, very clear to you. अगर आप ये इमेजिन करोगे, आप अपने ब्रेन को एंगेज करोगे, फोकस पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आपके अंदर बढ़ेगा, और एग्जाम क्या साहब, जिंदगी के भी एग्जाम पास कर जाओगे। रियल एग्जाम तो साहब डिग्री लेने के बाद आपकी शुरू होगी, अभी तो जस्ट एग्जाम की शुरुआत है। यहाँ पे विवेक सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि बच्चों में अगर डिटर्मिनेशन लानी है, विल पावर है, मैंने तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लाइन करके टेक्निक को बातें कह दिया, अब प्रैक्टिकल फ्रंट पे जरा बताइए कि बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, हाउ इट विल कम, बताइए। रिगार्डिंग एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें, समरी कैसे बनाए, डीप में नहीं, समरी कैसे बनाए। I told you earlier, you have to go for the summary. Right. Summary for each chapter and in your own way. ऐसा नहीं है कि आपको किस वे में लेना है, which are किसी भी वे में, so that at the time of revision, मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, when we were giving the exam of direct taxes, सर पूरे दिन असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम दे के आए 8 आवर्स में पूरा असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई। सो लेंथी, सो मतलब इतना ज्यादा सिलेबस वी हैव एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज दैट, सो go for that. And what I told you, do the practice for all questions. ICI modules है, अब प्रैक्टिस करो, ऑडिट मत करो उसके ऊपर। एंड देन प्लस इफ यू आर गोइंग फॉर सम नोट्स और सम ट्यूटर्स, गो फॉर दैट, नो इशू। बट ये नहीं कि एक टेक्निक एक्स की ले ली, एक टेक्निक वाई की ले ली, एक टेक्निक जेड की ले ली। यस, इफ यू आर गोइंग फॉर वन देन इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया। एंड वन मोर थिंग, 2-3 थिंग्स सर अगर कहे तो मैं शेयर कर लूं। एंड ड्यूरिंग एग्जाम डेज, वो आपसे भी मैं पूछूंगा, टेक प्रॉपर स्लीप। सर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, लोग सोते नहीं है, 4-5-6 डेज एग्जाम में सोते ही नहीं, बट 3-4 आवर्स स्लीप यू मस्ट हैव। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। That's very very important thing. Take the blessing. एग्जाम देने से पहले अपने मदर के पांव पकड़ के जाना, माँ की ब्लेसिंग कभी खाली नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएंगी। कोई है ही नहीं, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, जो अगर साथ में नहीं रहे, माँ साथ में नहीं रहती तो इमेजिनेशन में भी कर सकते हो। यस, हाँ, फोन आजकल तो सर सोशल मीडिया, फोन 2 मिनट में आप पता ही नहीं चलता आप कहाँ बैठे हैं। एंड टेक दैट। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट सर जो मैं डिस्कस करना चाहता था, एग्जाम टाइम में माइट भी उसी वजह से जो एग्जाम्स के ये 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पहले एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था सर। क्या होता था, आपने भी देखा होगा, मेरा तो ये हाल था, क्वेश्चन पेपर लिया, ओह अच्छा क्वेश्चन ये है, वो पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट राइटिंग, आंसर लिखना स्टार्ट, बस फिर दूसरा आंसर स्टार्ट, रिजल्ट आया फेल, स्टार्ट क्राइंग, मम्मी मेरा तो आंसर ठीक था, कॉपी निकलवा लो। आजकल तो बच्चे कॉपी निकलवा लेते हैं आरटीआई या वैसे, देखिए आंसर ठीक है। अरे आंसर ठीक है, व्हाट अबाउट क्वेश्चन? क्वेश्चन तो ठीक नहीं है। एग्जामिनर आर वेरी स्मार्ट, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है वो सेम कॉपी नहीं किया, आइदर उसने कोई जीरो ऐड कर दी, या कहीं कोमा लगा दिया, या कहीं कटिंग कर दी। तो माई रिक्वेस्ट, सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रीड द क्वेश्चन पेपर ट्वाइस थ्राइस, एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते,
बस क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद हमें लगता है कि आंसर शीट मिल जाए एंड स्टार्ट राइटिंग। आप 5 की जगह 4 क्वेश्चन कर लीजिए, बट मस्ट डू दैट। नाउ टू यू सर, फिर मैं और बाद में डिस्कस करूंगा, प्लीज। हाँ, मैं यही बात कह रहा था यहाँ पे कि आपको ये सोच करना पड़ेगा कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप कितने चीजें हैं। अब देखिए, जो विवेक सर ने कहा कि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ये क्लैरिटी कैसे आएगी? हाउ कैन यू गेट दिस क्लैरिटी? ये क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है, कैसे ट्राई मारना है, कैसे अटेम्प्ट मारना है, कौन सा क्वेश्चन हमें लेके बढ़ना है? तो टेक्निकली शिवा नेत्राय थर्ड आईज पे ये है। ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी आपको? ये क्लैरिटी मिलेगी, आप इमेजिन कीजिए कि कहीं पे भी आप बिल्कुल ग्राउंड में है और बारिश होने के बाद आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, और धरती और आसमान का मिलन हुआ है। अब देखिए कि होराइजन है, होराइजन मीन्स द कन्फ्लुएंस ऑफ दैट आपको मिला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कन्फ्लुएंस है, दिख रहा है कि कन्फ्लुएंस है, मिलन बिंदु है, लेकिन वास्तविक में क्या वो मिला है? नहीं मिला है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आप कैसे पढ़ रहे हो, और आंसर लिखते वक्त आपको कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है। बेस्ट पॉइंट पहले आना चाहिए, अपनी बेस्ट पॉइंट को छुपा के नहीं रखना, बेस्ट पॉइंट को पहले लिखना है और उस तरह से लिखते चला जाना है। क्लैरिटी की ताकत कैसे आएगी? क्लैरिटी की ताकत के लिए कलर है इंडिगो, कलर है इंडिगो एंड एलिमेंट है स्काई। अगर आप खुले आसमान को दिन में 2 मिनट, रात को 2 मिनट, रात को कभी भी, अगर अंधेरा रात है तो कोई बात नहीं, आप आसमान को देखो एक बार, आप कन्फ्लुएंस को देखो, कन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा, नीला आसमान को देखो और देखो कि क्या क्लैरिटी दिख रही है, क्या उसमें चीजें दिख रहा है। तारे सितारे को देखो, ऊपर देखो और देखो, आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आपको लगता होगा क्या देखने से क्लैरिटी आ जाएगी? साफ देखने और सुनने और सोचने से ही सब कुछ होता है, देखने और सोचने से ही होता है साहब। शमशान घाट में कोई जाता है, वहां पे लिखा रहता है आत्मा मरती नहीं है, फीलिंग करते हैं कि कोई मरा नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अगर कहते हैं कि आत्मा ना मरती है ना जलती है, वो तो सिर्फ अपना चोला बदलती है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी क्लैरिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि कुछ भी लिख के आ जाऊंगा और फिर मुझे नंबर मिल जाएगा क्योंकि मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, तो साहब आप गलतफहमी में ना रहे। दैट्स वेरी सिंपल। तो जो सर ने कहा कि आपको कैसे क्लैरिटी लानी है, हमने एक नुस्खा दिया कि क्लैरिटी लाने का तरीका क्या है, हाउ कैन यू ब्रिंग अ क्लैरिटी इन योर लाइफ। सो इसी प्रोसेस में विवेक सर आप खुद कुछ बोलना चाहते थे कि आगे क्या बोलना चाहते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का भला हो साहब। बच्चा फ्रस्ट्रेशन से निकले, एंजाइटी से निकले, वो सोचे कि यार चलिए करके देख लेता हूँ, यार क्या करना है, आसमान को ही देखना है ना, 2 मिनट देख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अरे लाल रंग के फूल को ही देखना है, देख लूंगा साहब। इमेजिनेशन करना है, अग्नि के सामने साहब कर लूंगा साहब। ऑरेंज कलर को देखना है, ऑरेंजेस को देखने, इमेजिनेशन में लेना है, ले लूंगा साहब। तो वो लेने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना साहब। तो आप जरा बताइए विवेक सर कि और एग्जाम के लिए इनको क्या करना है, कैसे करना है। उससे पहले एक क्वेश्चन ले लूं सर, आप भी अपना आंसर दीजिएगा, मैं भी दूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर। सो आशीष भाई, अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे आपके, मेरी एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, अभी राठौड़ साहब से भी पूछेंगे। सी फर्स्ट थिंग इज आप पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि यस आई वांट टू डू। अगर वो करवा सकते हैं देन इट्स ओके, नहीं करिए, डोंट गो अगेंस्ट द पेरेंट्स। माई सजेशन टू यू। यस सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आशीष भाई आपने बड़ा दिल वाली बात पूछ लिया। हम कलकत्ते से सीए कर रहे थे। हाँ। और हमारे पास कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर में कह दिया था कि मैं सीए का एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, नौकरी करते थे एज ए पेड असिस्टेंट, और बताऊं छुप के जाके सीए के एग्जाम 15 दिन की प्रिपरेशन से देते थे। और उनके अंदर एक ऐसी आग लगी कि एक दिन अचानक सरप्राइज दिया पेरेंट्स को कि पापा मैं सीए बन गया। मैं उस सीन को आज भी देख सकता हूँ, उनकी आंखों में जो आंसू आए। और उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि आप इसलिए कहते थे कि सीए ना करो
कि जब जब मैं फेल होता था तो मेरे दर्द में आपको दर्द होता था, तो मैंने उस दर्द को अकेला लेना शुरू किया, उस दर्द को आपसे बांटना छोड़ दिया। यू नो, लक्ष्मी नगर में चले जाइएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के यापन करते हैं जिंदगी। पेरेंट्स को कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा के आपकी भी इच्छाएं पूरी करूंगा, वह करते रहते हैं। अगेन बेटा, अगर आप बहुत बार एग्जाम में लुढ़क गए हो और पेरेंट्स के पास पैसा है, तो मैं आपको भी सजेशन देता हूँ कि कहीं से भी एमबीए वगैरह कर लो, कहीं से भी आप जेपी से कर लो, बालाजी पुणे से कर लो, आप एमआईटी का एग्जाम दो। एमआईटी मतलब नॉट एमआईटी दैट, एमआईटी इनफैक्ट पुणे आपको मिलेगा। सो नाउ अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि आप सिंपल पॉइंट यहाँ पे ये लेके देखो कि आपको वहां से ले लो, उसके भी मिलते हैं वो 7-8 लाख रुपया साल का आपका लग जाएगा। 2 साल के अंदर आप सीए की वहां प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपका इंटर हो गया है तो एक एक ग्रुप का देना, एक एक ग्रुप का देना। और ये देखना, सुबह उठ के एक्सरसाइज जरूर करना है, स्टेबिलिटी का, फियरलेसनेस का, सेल्फ कंट्रोल का, डिटर्मिनेशन का, विल पावर का, ये एक्सरसाइज जरूर करना। और वहां से एमबीए के साथ एक एक ग्रुप करके दो। और देखो, जब एमबीए और सीए दोनों साथ हो जाए ना तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, आपको नौकरी करने के लिए बातें करते हैं, तो एमबीए छोड़ो, सीए से ऊपर। साहब, मैं आपको बोलता हूं, मेरा दोस्त इज देयर, ही इज अ सिटी बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हिज नेम इज कक्कर, लाइक संदीप कक्कर। आप गूगल सर्च करना, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनके अंदर में नाना करके 500 IIM MBA है, IIM AIBC की मैं बात कर रहा हूं। सो इफ सीए जब टेक्निकली इतना एक्सपर्ट हो जाता है और फिर वो ऊपर जाता है ना साहब, तो उसके पास पावर होता है, गवर्नमेंट का पावर है, पार्लियामेंट का दिया हुआ पावर है, सब कुछ पावर है जो कि एमबीए के पास नहीं है। आई डोंट वांट टू कंपेयर दैट, बट द फैक्ट इज दिस कि आप सीए ना छोड़ो। अगर आपको लगता है पैसे ना है तो एक एक करके देते रहो। पेरेंट्स को बोल दो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है, श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं वचन तो दिया नहीं, पेरेंट्स को कह दो कि नहीं करूंगा, क्योंकि वो दुख में नहीं जाना चाहते, उनको दुख से बचाओ, उनको कहा था। इसमें क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है ना कि पेरेंट्स नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और रीजन है, वो अभी नहीं पता। अगर फाइनेंशियल, हाँ, चूंकि मैं बच्चों के साथ इसमें रहता हूँ, मैं तो देखता हूँ कई सारे पंडित कई सारे अंगूठियां पहना देते हैं। वो तो और ये बच्चों का मैक्सिमम क्या होता है ना, पैसे वैसे तो आज के दिन में सीए में सर क्या है ऐसा, सीए में कोई ऐसा तो एमबीए जैसे 10 लाख 20 लाख रुपया तो है नहीं। जब ये बच्चे फेल होते हैं ना तो घर में बड़ा डिप्रेसिव माहौल हो जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कुछ और कर ले, 90% केस में कहते हैं कुछ और कर ले। तो मोर देन अ फाइनेंस, इट्स अ पेन व्हाट पेरेंट्स गो थ्रू। सो दे से पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा पेन में है और बच्चे को लगता है मेरा पेरेंट्स पेन में है, और बिकॉज ऑफ दिस ये घर में क्लास होता है। तो मैं कहता हूं कि अल्टरनेटिव कोर्स भी कर लेना चाहिए। हाँ, अभी वो लिख रहे हैं आई मीन सीए फाइनल। हाँ, सीए फाइनल समझ गया, फाइनल में है तो यू कैन डू, आप जॉब्स वगैरह के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। एंड थोड़ा वही जो भी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, यू हैव टू शो द डिटर्मिनेशन। आपको एक मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन शायद कैंडल्स में, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, आप तो सीए फाइनल में है, विद जॉब यू कैन डू द स्टडी इजीली। आप एक अच्छे अमाउंट सेव कर सकते हैं एंड देन यू कैन आल्सो डू द स्टडी। और फाइनल में कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, दूर तक नहीं है। सी बेटा, आपका रिजल्ट रुक रहा होगा, मैं पहले ही बोला था रिजल्ट रुकता है, पेरेंट्स ऐसे कहते हैं। आपका सवाल है कि आप जॉब कर लो, जॉब करके एक एक ग्रुप को देखो, पेरेंट्स को बोल दो कि मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा दे दो। वेरी सिंपल पॉइंट इज द सॉल्यूशन। छोड़ो मत। अगर पेरेंट्स के पास पैसा है, सीए फाइनल में हो, तो भी आप एमबीए ज्वाइन कर लो और साथ में सीए फाइनल का ग्रुप भी देते रहो। आपके पास 2 डिग्री होगा बॉस, सीए एंड एमबीए। एमबीए आप कहीं से भी करो, जेपी से कर लो, बालाजी से कर लो, एमआईटी पुणे से कर लो, आप कहीं से भी कर लो। सीए विद एमबीए मींस यू हैव एवरीथिंग यार, एवरीथिंग। और मैं आपके जैसे बहुत बच्चों को, मैं बालाजी में ट्रेनिंग देने गया था,
बहुत बच्चे से मैं ऑडिटोरियम में गया, पीछे से जोर से आवाज आई, मैंने अच्छा। बोला ये सामने पापी है दिल्ली वाले। टोटल आपके एसएफ के क्लास में थे, अभी सीए फाइनल में है, लेकिन हमने सोचा कि ये भी कर लें, चलिए आर्टिकल सिर्फ हो गया था उनका। ना क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, अगर आप कर सको तो एमबीए भी कर लो, साथ में सीए भी कर लो, और मैट का एग्जाम दो, मैट के एग्जाम से स्कोरिंग अच्छा आएगा एंड यू कैन डू वेरी वेल। नाउ वी आर कमिंग अबाउट दैट कि अगर आपको कंपैशन चाहिए, अपने ऊपर फीलिंग चाहिए, क्योंकि आपकी एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज जो आपने सवाल पूछा, केयर एंड कंपैशन। आप भी केयर के मार से परेशान हो, कंपैशन के मार से परेशान हो, पिताजी भी हैं, मम्मी भी हैं, इसको कैसे कंट्रोल करोगे? हाउ कैन यू कंट्रोल दिस? How can you control your emotion for the care and compassion? How can you make yourself out of the feeling of the guilt that I'm not able to do? I'm so old that I'm taking money from my parents. How can we do that? इसका सिंपल तरीका है, इसका जो एलिमेंट है, इसका जो चक्रास है, हार्ट चक्रास है, कलर जो है वो ग्रीन है, और जो एलिमेंट है वो एयर है। आप इमेजिन करो कि आंधी आ रही है और आप आम के बगीचे में हो, एक आम लटका हुआ है डाली से, आंधी आ रही है, आ रहा है जा रहा है, आम आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, आप आम को देख रहे हो, हरे 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 पेड़ है, पूरे के पूरे हर जगह पेड़ है, वो आम जा रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लटके हुए हैं। वो बड़े से बड़े आंधी को बियर किया, अचानक आंधी चली गई और फिर भी वो आम लटका हुआ। आपको जस्ट ये इमेजिन करना है, देखिए उस पेड़ और उसके फल के कॉम्बिनेशन को, ये आपको कनेक्ट देगा, ये आपको कनेक्ट देगा। इमेजिन योरसेल्फ दैट आप टूटोगे नहीं, आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, और ये तभी होगा जब आप ग्रीन कलर को देखोगे। आप हर दिन ग्रीन कलर को देखो, बाग में जाते हुए देखो, खेतों में देखो, और नहीं है तो इमेजिनेशन में देखो और देखो उस ग्रीन कलर को, वो ग्रीन कलर आपको कंपैशन देगा। मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ, अब जहां भी है तुलसी का पेड़ लगाइए, तुलसी का पेड़ लगाइए, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसके पत्तियों को देखिए और सुबह सुबह पानी दीजिए। आप फील करेंगे उस केयर को, उस कंपैशन को, उस करुणा को। सो मैं तो आपको एक सिंपल एडवाइस यहाँ पे यही दूंगा कि आपको एक, अगर पैसे हैं तो एमबीए कहीं से कर लो, साथ में सीए देते रहना, नहीं है तो जॉब करके सीए कर लो। इट्स ऑल द गुड। हाँ विवेक सर, आप और क्या कोई कमेंट करना चाहते हो? मैं अभी बता रहा था, वो एक और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिवर्स। जानवी मिश्रा, हाँ, अब ये कह रहे हैं मेरे पेरेंट्स चाहते हैं सीए करना, बट मैं नहीं करना चाहती हूँ। देखिए वो रिवर्स है। what if we don't want to do CA but the parents ask you to do it? How can we focus? जानवी, एक बहुत छोटी सी बात है, आपने ये नहीं बताया कि आप 12th क्लास में हैं या सीए ज्वाइन कर चुकी हैं, और सीए ज्वाइन कर चुकी हैं तो इंटर पास हो गया या नहीं हुआ, ये जरा आप देख लीजिए। अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि सीए में आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साथ साथ आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। राइट। अगर आपके पास अपना इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब कि पेरेंट के इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू डू। Tendulkar denied to go into the college because he knew what his focus is. But if you don't have, and then you say that you don't want to go on the choice of the parents, means you are running away from the work, running away from the responsibilities. You can't do that. You cannot do that. So very simple answer is that आप escape कर रहे हो, भाग रहे हो लड़ने से, या कोई ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है जहां आपको जाना है। Tell that I want to do that, and dad, and I can do the excellent. If you can do that, that means you can do amazing. Even after this movie 3 Idiots, अब तो पेरेंट्स भी मानने लगे आपके कि यस, डू व्हाटएवर यू वांट। नहीं सर, आज पेरेंट्स भी एस्केप करने लगे हैं, बच्चे भी एस्केप करने लगे हैं। एग्जैक्टली। मैं हमेशा बोलता हूँ, आमिर खान ने मूवी बनाई 3 इडियट और बोला बच्चों की जिंदगी में दखल मत करो। वहीं एक दूसरी मूवी बनाई दंगल, बोला बच्चों की जिंदगी में पूरा उंगली करो। My simple question is that अगर if you have a choice, you can override the choice of your parents.
but you must have a choice. If you don't have a choice, you have no right to override the choice of your parent. Means you are practicing escaping. आप escapable बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. एक तो छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा एक बात करते हैं, अगर आप एनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे तो हर चीज में आपको कमियां नजर आएंगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप बोलोगे दुनिया मेरे से फोकस करके काम करवा रही है. देन यू बिकम रिबेलियन. देन घर वाले भी थोड़ी देर के बाद बात करना बंद कर देंगे. देन यू विल बी अलोन. देन हर बात में आप रोओगे, हर बात में रोओगे, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा. बेटर नॉट. चूज व्हाट यू लव, एंड इफ यू डोंट हैव, देन डू व्हाट योर लव्ड वन हैज चोजन फॉर यू. बड़ा सिंपल सा फंडा इस लाइफ का, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, और अपनी एनर्जी के लेवल को ऊपर उठाओ. एनर्जी के लेवल कैसे उठाते हैं, हमारे टाइम बहुत कम बच गए हैं. 5 भूतम है एनर्जी का. ये फायर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, स्काई एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, वाटर एनर्जी है. इसको यूज कैसे करना है हम कभी दूसरे सेशन में आपको जरूर बताएंगे कि अपनी एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को लेवल पे लेके आना पड़ेगा. सीए के गोल से आपके मन का एनर्जी कम है, इसलिए मैच नहीं हो रहा है. जिस दिन ये हो जाएगा मैच हो जाएगा. लेकिन अगेन हमें ये नहीं पता कि आप 12th में हैं या आप सीए इंटर कर चुकी हैं या इंटर में हैं. अगर पोजीशन पता हो तो विवेक सर विल बी एबल टू गाइड, और ये बच्चों के हेल्प में ही लगे रहते हैं. आप इनको मेल कर दीजिएगा और ये पक्का आपको आंसर मिलेगा. Sure. And Rishabh will answer your question later on, क्योंकि आप सीए बन गए अभी. दिस इज फॉर स्टूडेंट. एंड वन थिंग मोर I want to add, Rathod Saab. Yeah. In exam time, which I observed, way of presentation plays very important role. Very good. Yes. And your handwriting. Yes. Even I was not aware at that time. मेरा क्या रहता था, सबसे पहले राठौर साहब मेरे को ये रहता था कि सबसे पहले शीट मैंने लेनी है. मेरा ये था, सबसे पहले शीट लेनी है एंड स्टार्ट राइटिंग. शायद बुलेट ट्रेन से भी फास्ट लिखना, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे. अब जब हम पेपर चेक करते हैं तब लगता है कि यार कैसे पास हो गए. सो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, योर हैंड राइटिंग, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ योर हैंड राइटिंग इज गुड देन यू विल गेट एडिशनल मार्क्स, और हैंड राइटिंग पुअर है तो माइट भी आपको 1-2 मार्क्स कम मिल जाए. So please remember, even if you want to this one go for 5 question, go for 4 question, but in a good way. Way of presentation should be good. Yes, you want to add something? विवेक सर, आप ही की बात मैं कह रहा हूँ. अभी जो जाह्नवी के क्वेश्चन पे भी था, हमें अपनी एनर्जी लेवल को सेम लेवल पे आने पड़ेगा, अगले से मैच करना पड़ेगा. मैं एक छोटा सा सवाल बच्चे से पूछता हूँ. आप एग्जाम में ऐसे लिख रहे हो कि आपको खुद समझ में ना आए, तो आप कैसे सकते हो कि एग्जाम में कुछ समझ में आएगा? आई एम सरप्राइज ये कैसे बन गया. आज तक मेरी हैंडराइटिंग खुद नहीं पढ़ सकता. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाँ, और इसी अगर हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हैंडराइटिंग ठीक करो. इसका सिंपल मतलब, सर ठीक है हैंडराइटिंग अच्छी है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग आप मैनेज करो. विवेक सर ये कर रहे हैं, मैनेज करो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. विवेक सर ये नहीं कर रहे हैंडराइटिंग ठीक करो. हाँ, और वो 4 लाइन वाला अंग्रेजी का लाइन वाला लिखो ना. नो मैनेज. यस, वेरी सर ये कर रहे हैं कि उसको पॉइंट वाइज लिखो. 10 पॉइंट है तो सारे पॉइंट पहले लिख लो, फिर सारे पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करो. और जरूरी नहीं है कि 1000 वर्ड लिखना है. यस, 100 वर्ड लिखो लेकिन क्लियर लिखो. यस, इसमें एक और ऐड कर रहा हूं सर मैं. जस्ट चेक द क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स, 8 का. फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल मैं एमएसएमई पे बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया एमएसएमई डेफिनेशन, और क्वेश्चन मार्क्स है 2 मार्क्स, और मैंने पूरा 2006 से स्टार्ट कर दिया, कब से था, अब ये था, वो था, 6 शीट लगा दी. मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, टाइम वेस्ट कर दिया. मार्क्स कितने हैं 2, और टाइम भी वेस्ट कर दिया. So that is the main thing is presentation. You have to present कि आपको एक कितने टाइम में लिखना है, कितना लिखना है, कितने मार्क्स का है. Yes, you want to add something? हाँ, this is the only point is that आपको बड़ा सिंपल से
आपने 200 पे 20 पेज लिख लिया तो 2 का तो 2.5 नहीं मिलेगा ना, 2 का Exactly. तो 2 ही मिलेगा। सो दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं, अच्छा एक बात और भी है जो विवेक सर कहना चाहते हैं, एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन सबको पता है करना चाहिए, करते नहीं है। करते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ टाइम भूल जाओ। 3 घंटा का पेपर घर में करोगे तो 10 घंटा में होगा। 10 घंटा में भी तो देखो एक बार, एग्जैक्टली। नहीं हुआ तो सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करके देखो कि कहाँ पॉइंट मिसिंग है, तभी आपको एग्जाम में लिखना आएगा। यू मस्ट नो हाउ टू राइट। सर एटीसी भी करवाते हैं मॉक टेस्ट या नहीं? हम लोग का सर पूरा एनिमेशन बेस्ड क्लासेस है, और इस हम लोग स्टडी मटेरियल पे फोकस करते हैं। और सबसे बड़ी बात एनी टाइम क्लास में है जो आपने मुझे पूछा, हमारे एनी टाइम क्लासेस में कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी फैकल्टी नहीं है, कोई राठौर जी नहीं है, कोई शर्मा जी नहीं है, कोई गुप्ता जी नहीं है, कोई गोयल जी नहीं है, कोई जैन जी नहीं है। पूरे स्टडी मटेरियल को हम निकालते हैं, उसको मूवी में कन्वर्ट करते हैं, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं कि ऐसे लिखना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने कहा सर, बिल्कुल नहीं कहते हैं। और फिर हमारा एंकर पूछता है, वो एंकर कौन है? वो सीए होना चाहिए, लेकिन कहीं भी वो वर्क में हो, कहीं भी वो टीचिंग टीचर नहीं है। हम उसको स्क्रिप्ट देते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ता है और फिर पूछता है हर बार। यानी हमारी मैचिंग, हमारा टीचर कंटेंट है, हमारा टीचर नहीं है। आप विश्वास करेंगे सर, ऑडिट में अगर 13 चैप्टर है तो 7 चेहरे हैं पढ़ने वाले, टीचर है ही नहीं। कोई राठौर जी नहीं है, कोई शर्मा जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, व्यक्ति है ही नहीं। कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फेस ऑफ ए टीचर। Yes. So main thing that what we want to say, do some preparation like mock test, other thing before the exam. And another thing, can I add? अभी है हमारे पास 10-15 मिनट. Can I add? हाँ। One thing which I observed, please don't match your answer with your अड़ोसी पड़ोसी. सबसे issue sir, सबसे biggest issue. सही गलत है। You know, we CA student or other, even graduation or others. Like my example, answer is 9,000 और पड़ोसी का मेरे 10,000. अब मेरे को लगेगा he is very intelligent or she is very intelligent, और मैं अपने आंसर काट के सब कुछ मिला के 10,000 कर दूंगा. See, and only thing is self confidence. That what we want to say. Have confidence on yourself. आपने जो लिखा है, that's the true thing. Don't compare with others. विवेक सर, हाँ, yes. विवेक सर जो बात कह रहे हैं ना सर, जो मैं आपकी बात मानूं, जो बच्चों को आप क्लियर कह रहे हैं, माना कि वो इंटेलिजेंट है, उसका 10,000 आंसर आया, माना कि वो सही भी है, हाँ. लेकिन अगर आप 10,000 मैच के करने में ना आप अपनी प्रोसेस को मार दोगे। Exactly. सीए का एग्जाम हमेशा आपको प्रोसेस और स्टेप्स पे मार्क्स देता है। अगर 10,000 9,000 मैच नहीं भी किया ना और शुरू के 4 स्टेप सही है ना, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन उठा के पढ़े होंगे, अकाउंट्स में आपने टी सही तरह से लिख दिया तो साहब उसके भी मार्क्स है। तो एंड रिजल्ट के लिए पूरे प्रोसेस को क्यों किल करना, सर ये बात कह रहे हैं। Yes, yes, yes. और you have a confidence on yourself, right? Have a confidence on yourself. और जब आप एग्जाम में जा रहे हो ना बेटा, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मैं एक हमेशा बात कहता हूं, डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू हैव अ रैंक होल्डर। वो जरूरत नहीं है। आपको ये थिंक करना है कि मैं गोइंग इन फाइनल, या इंटर में रैंक लेके भी कहाँ गए, फाइनल में ही जाओगे ना, या सीए की डिग्री मिल जाएगी। आपको बार बार विवेक सर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 5 में से 5 सही हो, लेकिन 5 में से 4 बिल्कुल सही हो। बिल्कुल सही होने चाहिए। एग्जैक्टली। 3 सही हो तो भी आप पास हो सकते हो। हाँ, लेकिन अगर 3 सही नहीं है तो प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दो। विवेक सर इस बात को कह रहे हैं, 5 के 5 क्यों टॉपर सारे थोड़ी कर रहे हैं, मन ने पूरे 100 मार्क्स थोड़ी लाने हैं सब में सब, या लिंक। अगर आप प्रेजेंटेशन इस हिसाब से दे रहे हैं इन ए फोकस मोड, तो आप 5 के 5 भी कर सकते हैं। हाँ, टू द पॉइंट आता हो प्लस वे प्रेजेंटेशन। यस 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 यस। विवेक सर ये कर रहे हैं कि 4 बिल्कुल सही हो, वो ज्यादा बढ़िया है, 5 25% सही हो। एग्जैक्टली।
एंड यानी वन मोर थिंग, यस यस, आप कुछ कह रहे थे। विवेक सर ये कहना चाहते हैं कि आपको ये तो पता ही है, अगर 14 चैप्टर तो 14 चैप्टर है ना, 140 चैप्टर तो नहीं है। एग्जैक्टली आईएएस का एग्जाम नहीं है कि समंदर कहीं से भी आ जाएगा। अगर आप स्टडी मटेरियल करेंगे, आपको पता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कर ले तो उसमें तीन क्वेश्चन तो गिरेगा ही गिरेगा। अब 3 क्वेश्चन अगर बढ़िया से करते हैं कि चाहे कहीं से भी आ जाए मैं देख लूंगा, तो आपको पास होने से कौन रोक सकता है साहब। आप 1760 क्वेश्चन मत कीजिए, आप स्टडी मटेरियल बढ़िया से कर लीजिए। अब 10 ईयर्स का पास, 10 ईयर ज्यादा कर रहा हूं, 5 साल यानी 10 टर्म का पेपर कर लीजिए और प्रेजेंटेशन देख लीजिए। बार बार विवेक से कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख लीजिए और क्लैरिटी देख लीजिए, समरी बना लीजिए। समरी हर दिन रात को सोने के पहले विजुलाइज करके सोइए और देखिए रिजल्ट आता है। डर को निकाल दीजिए डर को, और फोकस कीजिए कि आप पास हो रहे हैं। ये मत फोकस कीजिए पिछली बार फेल हो गया था, कहीं इस बार भी हो गया तो। नो, PSFBI फॉर्मूला को यूज कीजिए। थिंक दैट यू हैव क्लियर, सी दैट यू हैव क्लियर, फील दैट यू हैव क्लियर, बिलीव दैट यू हैव क्लियर एंड टेक इंटेंस एक्शन टू क्लियर। सी व्हाट इज दैट। लास्ट थिंग कैन आई से? हाँ सर बोलिए। अगर आपने कुछ कहना है तो आप बताइए सर। कोई सर मैं आपके ऊपर बोलने वाला था, विवेक सर बोलेंगे। अच्छा, एक और थिंग जो मैं सर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सबसे, माइट बी। हाँ, एक और जो मैंने ऑब्जर्व करी है, स्टूडेंट क्या करते हैं आफ्टर गिविंग द एग्जाम, स्टार्ट डिस्कसिंग विच ईच अदर। स्टॉप दैट। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे आया, मेरा ये आंसर था, मैंने ये स्टेप लिया, इसका ये पूरा क्वेश्चन दे डिस्कस विद ईच अदर। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आफ्टर एग्जाम जस्ट गो टू योर होम। किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, इवन एट योर होम। सर क्या करते हैं बच्चे, बुक्स लेके चेक करते हैं। एक लाइन ऐड ऑन करता हूँ। Yes, please, घर जाओ, पेपर को, बुक से उस पेपर को कहीं पे फेंक दो। यस एग्जैक्टली, थ्रो दैट, डोंट डिस्कस। हाँ, बिल्कुल। घर पे भी डिस्कशन नहीं करना, आपने बुक से कंपैरिजन करना। इवन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपको कई बार ऐसा लगता है मेरा एग्जाम खराब गया है, उसी एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, और जो लगता है आपको एग्जाम सबसे अच्छा गया उसके सबसे कम मार्क्स आते हैं। इट्स ए फैक्ट थिंग। सर मैं आपको देखो, 2 चीजें जो विवेक सर कहना चाहते हैं वो ये है, मानो कि आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया, खुशी में नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट पेपर गया, यस, बहुत गंदा गया, दुखी में नहीं पढ़ोगे। बिल्कुल। और आपके जब हाथ में है ही नहीं, जब आपके कंट्रोल में नहीं है, देन व्हाई हो गया। यस यस यस। मैं आपको बता देता हूं, मैं रुद्रपुर में प्रोग्राम कर रहा था। हाँ, और मेरा क्रू था हिमांशु, एंड हम लोग क्रू में ट्रैवल करते हैं, तो प्रोग्राम में हमारे क्रू ट्रैवल करते हैं मोटिवेशनल वर्कशॉप में। आपने देखा होगा, आपके बर्थडे पे आए थे तो क्रू होंगे। यस यस यस। सर वो सीए फाइनल का बच्चा था, मैंने उसको एक सीए फाइनल में था, उसको मैंने क्या किया कि मैंने जबरदस्ती भेजा। मुझे वहां बोला कि सर मैंने फॉर्म भरा, बोला ऐसे जाके दे दे, और हमने कसम खिला के भेजा था कि तू हर एग्जाम जरूर दियो। आप सर ये ऐड कर दीजिए बच्चों को कि तुम्हारा पुराना पेपर कैसा भी क्यों ना गया हो, नेक्स्ट पेपर तुम छोड़ोगे नहीं। सर दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा पोस्टिंग का एग्जाम इतना खराब गया, मैंने अगले एग्जाम ही नहीं दिए। ओह माय गॉड। वो उसी एग्जाम में उसमें मार्क्स आए, एग्जाम बताओ, और बाकी पेपर ही नहीं दिए मैंने। सर हिमांशु के साथ यही दिक्कत हुई, उसके 73 थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और एग्जामिनेशन में नहीं मिला क्योंकि बाकी के पेपर में बैठा ही नहीं था। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज एंड प्लीज गो फॉर ऑल एग्जाम, चाहे कितना भी आपका एग्जाम खराब हुआ है, कितना भी खराब हुआ है एग्जाम, मस्ट गो फॉर दैट। और एक और चीज सर जो मैंने पर्सनल फेस किया है, आप अपना एग्जाम टिकट जरूर चेक करिए, उसके अंदर आपका क्या टाइमिंग है। सर मैंने 2-3 ये फेस किए हैं, टाइमिंग शाम का है, लोग सुबह का टाइम है, लोग दोपहर को पहुंच रहे हैं वहां पे। मींस एग्जाम डे में इतनी टेंशन हो रही है, एग्जाम का टाइम ही याद नहीं कि सुबह है या शाम को। सर मुझे बस याद है इंटर में ऑडिट वाले पेपर के एक दिन पहले मेरे को लगा लॉ का है, पूरा लॉ पढ़ के गया था। Exactly, that's what और I'm वहां saying. बच्चों के हाथ में ऑडिट के बुक देखा तो मैंने बोला ये बड़े इंटेलिजेंट है, नेक्स्ट पेपर के लिए बुक लेके आए। वही, बिल्कुल। वहां पे जाके देखा, अरे यार साला एग्जाम ही ऐसा है।
तो My only thing that's is the that thing. मैं तो ये भी हमेशा कहता हूँ कि सेंटर भी जाके एक दिन पहले देख के आइए। यस, सी स्मॉल सिटी में तो कोई इशू नहीं है कि आपके फॉर एग्जांपल वो स्मॉल सिटीज में तो छोटी सी जगह है, बट इन द प्लेस दिल्ली मुंबई तो आपको पता है जाने में भी 1 घंटा लगेगा, तो सो दैट आप अपना एक टाइम लेके चले कि मेरे को 8 o'clock एग्जाम है तो 6:30 या 7 o'clock घर से निकलना है, तो यू मस्ट गो फॉर दैट। बहुत अच्छे सर ने बताया, आप सेंटर भी देख के आइए। यस, सेंटर भी एक बार देख लीजिए। Yes, और yes, yes. एग्जाम के समय में जो सर बताया है, एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए, जो मैं आपको एक्सरसाइज बताया। एक बार फिर से बोलता हूं, आपको स्टेबिलिटी एंड फियरलेसनेस मिलेगा, आपको अपने थॉट पे कंट्रोल मिलेगा, आपको डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको केयर एंड कंपैशन मिलेगा, आपको अपने ऊपर बोलने की, अपनी कम्युनिकेशन की, एक्सप्रेशन की पावर मिलेगा, क्लैरिटी इन थॉट प्रोसेस मिलेगा। और छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलिए, किसने क्या कहा, कैसे नहीं कहा, और जो आप पढ़ते हैं प्लान कीजिए, इतना दुनिया इधर से उधर जा, मेरे को करना है। अगर आप सोचेंगे कि होगा तो होगा, आप सोचेंगे कि ये बकवास से नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। शिव कहते हैं जिसको ना आता है उसको समझाना अच्छा है, आसान है, लेकिन जिसको आता है और मान के बैठा कि मैं नहीं समझूंगा, ब्रह्मा भी उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। कृष्णा ने सारी चीजें कर ली, थोड़ी सी सतम बुद्धि डालने की, लेकिन तमस बुद्धि से दुर्योधन हिला नहीं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जबकि अर्जुन वाज सो ओबीडियंट दैट ही फॉलोड एंड ही गॉट इट डन। तो यहाँ पे विवेक सर हर जगह जा रहे हैं, आपके लिए इनपुट लेके आ रहे हैं, हर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाइएगा 10 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जो इनके रिसोर्सेज हैं वो आपको भी फ्री में दे रहे हैं, और जो कोई व्यक्ति आ रहा है उसको भी फ्री में यूज करवा रहे हैं, यानी ही इज बीइंग यूज्ड बाय द बोथ ऑफ द सोर्सेज। इनको क्या लेना, विवेक सर को क्या लेना देना, आराम से बैठो ना। बट अगर आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म यूज करवा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, तो देखो भाई, मेरा तो एक ही सजेशन है, इसको यूज जरूर करना। हाँ जी विवेक सर। यस सर, 1-2 क्वेश्चन है ऋषभ जैन का, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, माइट बी से यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो। कुछ लोगों को लगता है हमारे ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो एक चीज कहता हूँ सर, हमेशा, इवन व्हेन आई वाज द जीएमसीएस चेयरमैन, आई वेंट टू जीएमसीएस क्लासेस, तो मैं ये कहता था असली रची हुई मेहंदी तो वही है जो मल्टीपल अटेम्प्ट में पास हुए सर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके अटेम्प्ट्स 1-2 ज्यादा लग गए, इफ यू अचीव, देखो फर्स्ट जॉब मिलने में थोड़ा सा इशू आएगा। कुछ कंपनीज हैं, दे आस्क फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन अब कुछ टाइम से ये हो गया, दे नीड फॉर द मल्टीपल अटेम्प्ट, इवन दे आर आस्किंग, राठौर साहब कैंपस में दे आर आस्किंग कि हमें मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे चाहिए। सो अगर आपके 2, 3, 4 अटेम्प्ट लग गए तो डोंट माइंड, आप ऐसा मत सोचिए कि चीज ज्यादा लग गए, कुछ नहीं होना। आपको एक कुछ लेवल पे आ जाएंगे तो नोबडी विल आस्क कि आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे। यस, आप कुछ ऐड कर रहे थे सर। मैं आपको एक, विवेक सर आपने अपना अनुभव शेयर किया। मेरा प्रोफाइल मैडम ने बहुत फास्ट पढ़ा, अच्छा, और मैं चाहता हूँ तक सीधा काम पे आ जाए। वी वर्क एज ए प्रोफेशनल स्ट्रैटेजिस्ट even along with the McKinsey's, and we meet with the chairmen of the companies and CEOs of the companies. Trust me, even first job में भी वो ये बिल्कुल आपका बॉस मार्कशीट भी नहीं देखते, आपका डिग्री भी नहीं देखते, आपने बायोडाटा में सीए लिखा है वही बस हो गया। यस, और सुनो, उनको जो चाहिए वही देखते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एटीट्यूड से इसका एटीट्यूड मैच कर रहा है नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, यानी वेदर यू फिट इन देयर एनवायरमेंट और नॉट। मैं पावर ग्रिड में बैठा था, IIM अहमदाबाद का बंदा आया हुआ था, एनवायरमेंट में फिट नहीं था, एंड चेयरमैन मिस्टर चतुर्वेदी वाज सेइंग दैट यार गलत हायरिंग करी है, क्या करूं समझ में नहीं आया, इसको कितनी बार बोला तू छोड़ दे, ये सरकारी नौकरी के चक्कर में छोड़ नहीं रहा। साहब, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर, ये तो रियल एग्जांपल दे रहा हूं। आई सेड द वन वेरी वन, मैं धोनी से बहुत प्रेरित हूं, महेंद्र सिंह धोनी। जब युवराज सिंह हिंदुस्तान के युवाओं के दिल के धड़कन बने थे, तो महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर में खेप क्रिकेट खेलता था, और उसके दोस्त बोलते थे तेरे साथ क्या था ना। अगर उसमें देखिएगा, एक मैच है पंजाब वर्सेस बिहार, जिसमें 300 रन युवराज सिंह ने एक ही बार मार दिया था खुद ही,
But the Yuvraj Singh was so popular. After many years of the Yuvraj Singh playing, Dhoni came. And what Dhoni did, and where Dhoni is. अब आप बोलेंगे धोनी अकेला है। साहब, एक इच्छा ही तो चाहिए जिंदगी बदलने के लिए। मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूं जो 5th अटेम्प्ट में फाइनल किया और आज $7 मिलियन के पैकेज पे बैठा हुआ। वेरी वेरी। मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूं जो 3 अटेम्प्ट में पास किया और नारायण मूर्ति की जब कंपनी छोड़ी तो 17 मिलियन रुपीस का कंपेंसेशन कंपनी ने दिया। He's a friend of mine. We studied from same college. अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा ज्यादा अटेम्प्ट हो गया, मेरा क्या होगा, तो आप अपने आप को फेलियर के गर्क में ले जाने के लिए लाइसेंस ले रहे हैं कि नहीं मिला तो क्या नहीं हुआ। आप ये देखिए कि मेरे पास अनुभव है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप अनप्रोडक्टिव हैं तो अनप्रोडक्टिविटी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक्सपीरियंस पीपल आपको अट्रैक्ट करेगा। और मैंने देखा है कि कई लोग बहुत पहले शुरुआत कर लेते हैं, कई लोग बाद में शुरुआत करते हैं, और बाद में शुरू करने वाला लड़ाई जीत जाता है। So you want to be the winner or loser is all your thinking process. TSFBI, simple TSFBI. That's all. आपको जोड़ना चाहते थे सर? यस, सर एक दो पता नहीं चला। हाँ, तो बस फिनिश कर रहे हैं, एक दो क्वेरीज ले लें बस। ये श्वेता मैडम आई थिंक कुछ सीए भी देख रहे हैं, वैसे तो हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए था। हाँ, श्वेता जी की कुछ क्वेरी है। हाँ। What should I do when CA final exam and their bad environment at home due to other reasons and parents again and again told that तुमसे नहीं हो पाएगा, so also forcing for marriage mind get fully disturbed. Again, श्वेता एक बात ध्यान रखिएगा, यू आर अट्रैक्टिंग दिस ऑल। मैं जब कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। ये सेम क्वेश्चन एक और भी ऐड है उनका, ऐड ऑन कर लीजिए इसको भी। Sir, how should do study and stay focused on exam in activity environment when no one supporting us? तो सेम थिंग उसी में। श्वेता, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको बात में कह रहा हूं कि आप मेरी बात को कहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम निकालना किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप में एक तरीका बताते हैं, सीधा तरीका पे आ रहा हूं। वी कॉल ग्रैटिट्यूड। एनवायरमेंट निगेटिव हो, लेकिन अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड कहोगे ना कि थैंक्स गॉड यू गेव मी दिस एनवायरमेंट बिकॉज आई एम मोर फोकस्ड बिकॉज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, आप उस व्यक्ति को माफ करके फोकस करना शुरू कर दोगे। आई टेल यू, कई बार क्या होते हैं कि लोग निगेटिव एनवायरमेंट को भी पॉजिटिव बना लेते हैं। एक बात बताओ सर, सिर्फ एनवायरमेंट से सफलता थोड़ी मिलती है, थॉट से मिलती है। TSFBI, मोदी को पॉजिटिव एनवायरमेंट था या राहुल गांधी को? बताइए। ऑफ कोर्स राहुल गांधी को। वेयर इज राहुल गांधी एंड वेयर इज नरेंद्र मोदी? गुड और बैड आई एम नॉट टॉकिंग, बट उस बंदे ने उस निगेटिव एनवायरमेंट को भी पॉजिटिव कन्वर्ट करके आगे बढ़ा। राहुल गांधी ने पॉजिटिव एनवायरमेंट को नेगेटिव कर दिया। इट्स ऑल लाइक हाउ यू थिंक, हाउ यू सी, हाउ यू फील, हाउ यू बिलीव एंड हाउ यू एक्ट। मैरिज से ओके आई मैरी, लड़का ढूंढो ना, लड़का ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं। और जिस दिन आप अपने दिल से उनको माफ करोगे, जब दिल से उनको माफ करोगे, दिल से, ट्रस्ट मी, आपके शरीर का एनवायरमेंट ठीक हो जाएगा। और जब शरीर का एनवायरमेंट ठीक हो जाएगा तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी सही हो जाएगा। श्वेता, बड़ी सिंपल से बात हूं, रात को सोते समय सिंपल बोलो। जब मैं बोलता हूं, अपने कॉर्पोरेट में बोलता हूं, लोग पूछते हैं सब मेरी टीम अनप्रोडक्टिव है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है बिकॉज माई ऑफिस इज सपोज्ड टू बी क्लोज्ड एंड पीपल आर वेटिंग फॉर ब्रीफिंग। ध्यान से सुनिएगा, 5 फिंगर में दुनिया कमान है। आप बोलते हैं सारी दुनिया बेकार है, क्या सारी दुनिया बेकार है? नहीं। हमेशा पेरेंट्स टोंट करते हैं, क्या हमेशा टोंट करते हैं? नहीं। मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। अच्छा, नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? वो रीजन,
ये कंट्रोल प्रोसेस है जो हम उंगली पे हम लोग बताते हैं लोगों को, इसको हम डिसीजन मॉडल कहते हैं कि लाइफ को डायरेक्शन क्या दिया जाए, विजुअल कैसे दिया जाए, राइट। बट मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं टेक्निक में, बस आप ये समझिए कि ओ गॉड यू गेव मी फादर हु इज ड्राइविंग, क्रिएटिंग अ ड्राइविंग फोर्स बाय मेकिंग अ टॉन्ट। वो मुझे टॉन्ट करते, देखिए अगर आप सोचेंगे कि वो टॉन्ट करते हो, कुछ भी नहीं आपको टॉन्ट लगेगा। जब सोचेंगे, आफ्टर थॉट्स, आफ्टर इज अ थॉट, सिंपल थॉट प्रोसेस, नथिंग एल्स। आप निगेटिव एनवायरमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए लाइफ बदल जाएगा साहब, लाइफ बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा। पे द ग्रेटिट्यूड, ओ गॉड यू गेव मी अ नाइस डैड who's always commenting me, nice mom who's always commenting, my friends who's always commenting on me। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। डोंट रन अवे, डोंट रन अवे, और से थैंक यू टू देम। हम लोग ग्रेटिट्यूड फॉर्मूला बताते हैं, वक्त नहीं है, मैंने हम प्रोसेस बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड आप कैसे देना चाहिए, हाउ कैन यू गिव द ग्रेटिट्यूड। और पहले निगेटिव को ग्रेटिट्यूड बोले। कई लोग बोलते हैं नौकरी करते हैं और फिर कहते हैं चोर है लाला लोग, बिजनेस कमाते हैं पैसा करके। अगर आप सोचते हो कि बिजनेसमैन चोर है तो उस चोर के पैसे से आपका घर चल रहा है, निगेटिव एटीट्यूड है साहब। अगर आप सोचेंगे कितनी मेहनत करके मेरा लाला पैसा कमा रहा है, मैं मेहनत करके दूंगा, आप एक दिन लाला बनेंगे। सो थॉट बहुत बड़ी चीज है विवेक सर, और इसमें बहुत अच्छी चीज है कि आपको ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज पे कीजिए, एनवायरमेंट को, मदर को, फादर को, ब्रदर को एक दिन ऐसे बोल के दीजिए। हम लोग एक प्रोसेस कराते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड द टाइमलाइन थेरेपी। उसमें आंख बंद करवा के, गड्ढा खुदवा करके जितने भी निगेटिव थॉट को उसमें जलवाते हैं, फिर भरवा देते हैं। भरवाने के बाद हम उसको फिर पॉजिटिव स्ट्रेंथ निकाल के लेके भरते हैं। This all like we do. We are not the tantric, but we use this thought to change the thought processes. Because अगर फिजियोलॉजी और थॉट चेंज हो जाता है तो लाइफ चेंज हो जाता है। सो आप कभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे तो आप आइएगा और फिर हम लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन अभी एग्जाम के लिए पे द ग्रेटिट्यूड, आप ठीक है, आपका भला हो, सब कुछ अच्छा हो, राइट। यस यस, सो थैंक यू। एंड अभी तो ओनली फोकस इज एग्जाम, देन आफ्टर दैट विल रिक्वेस्ट टू द राठौर साहब फॉर सम अदर वेबिनार, एंड इवन ही इज डूइंग ए वंडरफुल वेबिनार। सर की शायद एक सीरीज भी चलती है, 3-4 डेज प्रोग्राम करते हैं, योद्धा एंड अदर थिंग्स। सो वो भी आप लोगों से जब टाइम विल शेयर इट। नाउ ओनली टाइम इज फोकस, एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एंड से टू ऑल ऑफ यू, वो कहते हैं ना, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो, फिर देखो आसमान में सुराग होता है या नहीं। तो एक अटेम्प्ट तबीयत से लग जाओ, इतनी मेहनत करो, फिर देखो कैसे पास नहीं होते। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्पेशली टू राठौर साहब फॉर गिविंग अस टाइम। एंड हमने तो 1 घंटे के लिए बोला था, नाउ इट्स मोर देन 130-140 और, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Download the app Anytime Classes. Buy CA classes in app, pen drive, SD card and in tab. Learn like never before. Buy full course at promotional price. Don't forget to download the ATC app for free motivational videos